Recording in progress. Okay. So yeah, I think recording is on now. Yes. So first meaning, scope, and significance. Then we'll look at the views of Wilson. How the Woodrow Wilson, he's considered as the father of public administration. What were his views and how his views have contributed to the emergence of public administration as a separate discipline. That aspect, and then there will be multiple contributions of Wilson's that we'll look at, and then we'll look at the evolution of public administration to the current status, how it has evolved from the from the letter from the article that was written by the Woodrow Wilson in 1887 to the contemporary time. Okay. And then how the idea of how new public administration has emerged. What do you mean by the newness in the new public administration? Then we'll also look at public choice approach, new public management. So all the contemporary development in the 80s and 90s. Then after 90s we have the phase of good governance, and then later on we'll also discuss about the post MPM models. Okay. So these are the topics that we are going to cover. So first, let us begin with the Woodrow Wilson itself. How in this topic, what we are going to discuss, how the Woodrow Wilson, what was his context, why he wanted public administration should be studied separately. Okay. So the important aspect that we'll be discussing. Just a minute. Yeah. So the factors, what are the factors that have influenced the emergence of public administration as a discipline? Why he was, why Woodrow Wilson came to a conclusion that there should be a separate discipline. That aspect we'll study, and then we'll look at how the Woodrow Wilson was influenced by the activity, various principles, tools, and techniques that was developed by the contemporary thinkers. Contemporary thinkers mostly, we study about the Taylor. Basically the classical thinkers. They started coming up with the certain management tools and techniques, principles, which were important for the for the efficiency of administration. So in the beginning, okay, there is one person, I think that it is unmuted. Can you mute it itself? Yeah. So and then how then once he was influenced by the context of his surrounding, that means that was era of industrial revolution, and that requires a lot of efficiency. You cannot have the wastage of resources, wastage of manpower, and there was a spoil system. Basically there were political appointment. The term spoil system, even in the contemporary time, once you hear about the lateral entry in the newspaper, then there are multiple articles which expresses the fear of politicization of administration. Means there could be revival of a spoil system. So those have annoyed the youthful population of the American citizen. So they wanted to have a merit-based system. Okay. So the idea of efficiency concerns of that era because of industrial revolution, then the politicization of administration. So Woodrow Wilson was also influenced by the urban governance model that was at that point of time. It has become very popular in America that in the cities they had the city governance system where the political system was separated from the administrative system. So it has also built up the idea of dichotomy. Okay, and then Woodrow Wilson, once he got the opportunity to analyze the administrative system of the European country, and he was also influenced why the administrative system of the European countries, they are more efficient than the administrative system of democratic country like USA. So he was puzzled why why it has been why the administrative system is not so efficient in the democratic setup than in the monarchical system in the Europe or France or Germany. So he emphasized on the comparative analysis part. That means there should be comparison between the administrative system of different countries. Basically once you make a comparison, you come up with the idea of strengths and weakness of different administrative system. Then that could help us in improving the administrative system of a particular country. And the same idea would be used by later thinkers like Ricks and then other and new comparative public administrative groups. So he was one of the originator of the comparative analysis. So that is also very important thing. Then regarding the politics administration relationship, once he wrote the red essay, the study of administration, in which he raised very important questions.
basically he wanted that the public administration should be studied in the universities, in the colleges, as a separate discipline. There should be development of tools and techniques. There should be development of principles which could be universally applied. Basically he was emphasizing on the science of administration. So that is also one of the important contribution of Woodrow Wilson. That means we'll be talking about how the various scientific analysis of the processes, the appointment process, the distribution of work, all the classical thinkers, later thinkers, that we'll be studying in later second chapter. Then the main objective of Woodrow Wilson was how to increase the efficiency of administration, how the effectiveness, how the efficiency or outcome of the it could be made more outcome oriented. And why this happened? Because there was rise of democracy, there was empowerment of citizens. So people have become more demand driven. This administrative system, the people started asking for more and more rights. They were looking for better services. More efficient administrative system has to respond to this demand by the citizen. So that was the concern of that time. Okay. And then the public, because he was also fearful of the administrative system becoming so powerful that it could also take away the rights of citizen. At this point of time now, we are also having the we are facing the problem that there are people who are facing the threat of administrative over reach, or there are issues of scooping is there are surveillance on the citizen. So there were concerns regarding the making the system more accountable. Okay. I think there are few students who are waiting in the waiting room. Let me just put it in them in the chat box if it is. Yeah, just a minute. Yeah, I think they have joined in. Just 1 minute. I think others have joined in. Yeah. So in between, we have to look for if someone is being, asking to join. Okay. So basically, yeah, again, we'll come to the Woodrow Wilson contribution. So we were looking at the various contributions of Woodrow Wilson. What were the major contribution of Woodrow Wilson in the field of public administration? So far, briefly, we tried to understand how he wanted that administrative systems should become more efficient. There should be focus on the development of tools and techniques. Then we were looking at the dichotomy concept. Again, the dichotomy, lot of questions have been asked on the concept of dichotomy. What how the dichotomy became the DNA of public administration, how the idea of separation of politics from the administration initially built up the basis for the emergence of public administration as a separate discipline. But later on there were multiple reinterpretation of the idea of dichotomy, that again we will be discussing in detail. And then we have discussed about the three E's, that is the economy, efficiency, and effectiveness. Economy is there should not be any wastage of resources. Efficiency means the process should be more efficient, and effectiveness means they should be able to meet the outcomes, the objectives for which they had devised the administrative system. Okay. And then public control, because he was also concerned about the administrative system being more accountable to the citizen. If the administrative system becomes so powerful, that becomes like Frankenstein monster that has been talked in political theories. This state become too powerful since bureaucrats they are selected for on a permanent basis. So there is a fear because they are more technical expert. So they have a greater tendency to acquire more and more power. So Woodrow Wilson was concerned that there should be effective public control on the administrative system. Okay. And then he wanted to make more business-like approach, because politics, there was spoil system, there was too much political interference. Even the various initiative reform measures that was taken, during 80s, like the Pendleton Act that we, read in the class in the public administration, that has also, limited the application of merit-based administrative system. That was limited only to the 10% of the upper, level higher bureaucracy. So again, that has created problem. Then he wanted merit-based bureaucratic system. There should be training, emphasis on the training part, and other aspect, that is the comparative aspect. Again, we have discussed how he wanted that the administrative system should be compared with other administrative systems, so that you can come to know your own strengths and weakness. Just like all of us
all of you give the exams so that you understand your own strengths and weaknesses, make a comparative analysis, what are the areas where you can improve upon. Similarly, the administrative system should also be analyzed in a comparative, way. So he became originator of comparative study. Later on, Riggs and other thinkers will carry forward the idea. So this was the major contributions of Woodrow Wilson. So there are multiple questions. Again, in the third class, we will be taking the all the major questions on every topic, whatever the topics that we are discussing. So how we will be using those concepts, those ideas into the answers. Again, we will be discussing in later, like some of the questions which are given here. We have just pointed out whether politics and administration dichotomy was a naive concept, whether politics administration dichotomy now at this point of time stand rejected. Critically examine again the command words. Again, we will while analyzing the question answer session, we will discuss how the various command words that defines the nature of answer. Basically the concept is same, but the way you are answering, the way you are molding your content, that should be based on the demand as well as the command of the question. Command is critically examine. That means major section should be to reject the given statement. Okay, again we'll discuss all the tail words, we'll discuss all those aspects. And then what is like the third question is politics administration have a reciprocal relations. Again, that aspect again we'll be discussing. Then there are the field of administration is the field of business. So that was the original idea of Woodrow Wilson. That means administration should act like a business. So business like approach should be there. It should focus on efficiency, economy aspect. It should develop tools and techniques. So those managerial skills, techniques should be taken into the administration on the basis of all the idea of Woodrow Wilson. So whenever you are studying Woodrow Wilson, you have to understand the context of the Woodrow Wilson. That means what was his context, political context. There was a spoil system, the economic context where there was industrial revolution, the administrative context when there was the urban city governance model which has emerged very effectively in the USA. And then the comparative step, when he was comparing with the other countries, he found that administrative system was more efficient in the France and Germany. Again, why? What was the reason? So he wanted to study those aspects. Okay, the context should be very clear. Then the major contributions, what are the areas that he has touched upon, all those aspects, the major contributions that we have listed, we have just briefly discussed. And then impact, relevance at the later phase, how the Woodrow Wilson's idea remain relevant in this contemporary time. Has the ideas of the Woodrow Wilson been rejected in the contemporary time? All those aspects that will be that should be kept in mind. So prevailing situation, just briefly if we try to look, that we have discussed, there was a spoil system, means political system, there was political appointment based on the party system. For example, in the India, just imagine a situation where if BJP comes to the power, then all the top bureaucrats are replaced by the BJP or RSS members. Or if Congress comes to the power, then all the top level bureaucrats are being replaced by the Congress members. So again, it will make the administrative system a spoil system, again based on political patriotism, proximity to the political leaders. So again, it will revert back to the political system that was existing during the monarchical time. Even in the monarchical system that we read, that king used to appoint all the top level officials, that we all of us read in the history, modern history, or once we read the second paper, that is paper 2 chapter 1, evolution of Indian administration system, then we see how the administrative system, how that was existing during the Kautilyan time or Mauryan time or Mughal time. So again, how the spoil system was prevalent at that point of time. Okay, then administrative relationship, basically there was politicization, it has led to the politicization of bureaucracy. Again, Riggs, again we'll be talking another aspect of the bureaucratization of politics by the Riggs. Again, those aspects we'll be discussing. Then science of administration. Science of administration. Why do we need the science of administration? I think now briefly you have the idea, and all of us, all of you also should try to revise, so that in the next to next class when we discuss the question answer, we expect you to participate more, and you should be able to come up with your ideas so that we can make the necessary corrections. And then science of administration, how the public administration, how then tools and techniques can help the systematic study of the public administration into the various universities, into the various colleges, or research in the public administration can help in the development of science of administration.
that again this idea of science of administration will also put us into the dilemma of the question of discipline itself, whether public administration should be considered as a discipline or not. Okay, that aspect we are going to discuss in the later phase. Okay, then dichotomy concept, how it has been rejected. There is a re-emergence of the idea of dichotomy. Frank Goodnow has also published a book on the dichotomy. He is considered as the father of American public administration. So there are, why I'm discussing, talking about some of the contributors or thinkers, because you have to use some of those thinkers into your answers, because they are the foundation, founding, thinkers, or they are the initial initiators of public administration. Okay, then other aspect, briefly we'll discuss regarding the business like approach. Or so if you talk about Woodrow Wilson, views in the public administration, so he wrote an article, at a very young age, in the form of the study of administration in 1887. It has also, he has raised multiple questions into the essay that he has written, the article that he has written. So again, that has become basis for the debate. There are public debates, there were, discussions in the academic domain. There were professors who were, proponent of the Woodrow Wilson's view, there should be separate discipline. So far what happened, so far there was, three phases. Basically, if you divide the entire history, there was first phase was, there was absolute monarchical rule, that was kind of a spoil system or based on monarchy. And then the during, 12th century, again in the 12th century, 13th century itself, there was demand for democratization of administrative system, political system. Multiple, political philosophers have come up with the various models that we also read in the state theories. Once you read the public policy chapter, there are, multiple topics with regard to the state theories, that is the contract theory or idea of, social contract, that again we'll be discussing. So again, that has led to the demand, empowerment of citizen. People started asking for the limited government. So that has led to the struggle for constitutionalism, that we are, that we can see here. So that was an era of a struggle. So first phase was monarchical system, then there was a struggle for constitutionalism. And once the constitution was framed, once the democratic system was established, there was again demand for the, better quality of service, better administrative system. For example, if you see Delhi's population scenario, if, there are pollutions which are impacting the citizen, there is a lot of, civil society group, media groups, NGO, they are, putting pressure. Even the judiciary is very active. Recently, maybe today or yesterday, again there are a lot of discussions and debates are being initiated, so that, ultimately the quality of service that is provided by the administrative system, that should be, inducive, or people should be satisfied with those services. So that is the era of constitutionalism. Again, this is going to be linked to the, paper 2 chapter 2 concepts. That is a concept of constitutionalism. What do we understand by the idea of constitutionalism? For example, for in our country we have the constitution, but do we really have the constitutionalism? That is again the question that is being asked by the, multiple individuals, whether, we have the appropriate effective implementation of constitution or not. Okay, then major contributions that we have already discussed. Then he is also one of the initial comparatives. He is considered as a originator of comparative study. Okay, then basically if you look at the idea of dichotomy, so dichotomy, again, dichotomy, idea of dichotomy has been multiple times, it has been, though it has become the DNA of public administration, but it was rejected also multiple times. Multiple thinkers, they have come, they have rejected the idea of dichotomy. That means dichotomy means politics and administration cannot be, completely separated. That was the idea. Again, there are multiple thinkers, that has led to the reinterpretation of public administration, what, various relations that we exist. For example, if you look at the major those thinkers who have reinterpreted the idea of dichotomy, one is Mohit Bhattacharya. He believed that, Woodrow Wilson himself reviewed the idea of dichotomy. That means the politics and administration cannot, administration cannot be diverse from the politics, they are interrelated. Okay, so again, Woodrow Wilson in the later writings, once you look at, so again the idea of dichotomy, he himself reviewed it, but it is not much emphasized on the literature.
Okay, then we have the Frank Martin. Frank Martin talked about the fusion of politics and administration. Again, it is the reinterpretation of idea of Hello, sir. dichotomy. Yeah, yeah, please. I'm sorry to disturb, sir. Yeah, please. Few students are waiting in the waiting room. Can you let them Okay, in? just okay, okay. Thank you for reminding. Yeah, I think I need to make some of you as a co-host in between so that you know. Yeah, thank you for reminding. Okay, so Excuse me, sir. yeah, please. Sir, will it be okay if we have a mix of Hindi and English? Okay, okay, okay. So, are you all comfortable? Is there anyone who is has any problem in Hindi, or are you all comfortable in Hindi so that we can use the both mix up? अच्छा, ठीक है, हिंदी मिक्स. ओके, ओके. Okay, very good. Thank you. So, is my audio clear, or is there any noise? It is clear, sir. It's clear, na? Okay, thank you. Just a minute. तो सो फार हम लोग अभी तक क्या देखे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सेपरेट डिसिप्लिन की जरूरत पड़ी है ना. वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर न्यू वेज टू रन द गवर्नमेंट अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक दैट है ना वी आर गोइंग टू डिस्कस मीनिंग स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. उसमें हम लोग देखेंगे आखिर एडमिनिस्ट्रेशन को अलग करने की जरूरत क्यों पड़ी. व्हाई डू वी नीड टू हैव ए सेपरेट स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. उसमें डायकोटोमी बेसिस बन गया. डायकोटोमी क्या था, पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन से अलग करना है ना. तो हाउ टू सेपरेट दैट वाज द आइडिया ऑफ डायकोटोमी. लेकिन क्या हुआ, डायकोटोमी में भी प्रॉब्लम था इंटरप्रिटेशन. क्योंकि जब विडो विल्सन वंस ही रोट द एसे, जब उन्होंने एसे लिखा, so that was very vague idea of administrative system. He was not into the administrative system at that point of time, though later he became the president of also president of USA. So again the idea of dichotomy, no, he has very vague understanding. But later on thinkers like फ्रैंक गुडनाउ ने उसको पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन करके एक किताब लिखा. उसमें डायकोटोमी को री एम्फेसाइज किया गया. तो दैट बिकेम बेसिस फॉर द again that is the basis for the generic view of administration also. Means that has also led to the coming the administration more closer to the management. यानी मैनेजमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन से जब इक्वेट करने का आइडिया है, दैट इज द जेनरिक व्यू. नॉर्मली मेनी टाइम्स यू गेट ए क्वेश्चन कि व्हाट जेनरिक व्यू पे जैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो यू हाउ मैनेजमेंट हैज बीन इक्वेटेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन. because of dichotomy and because of business like approach, focus on the economy efficiency and effectiveness, it has made it administration more closer to the management. Okay, तो अभी हमने देखा कि जो रीइंटरप्रिटेशन हुआ डायकोटोमी का, जो रीइंटरप्रिटेशन हुआ, कई सारे थिंकर्स कई सारे स्कॉलर्स ने किए थे. उसमें तो तीन चार जो स्कॉलर्स जो हम लोग नॉर्मली आंसर्स में यूज करेंगे, दे आर लाइक मोहित भट्टाचार्य. उन्होंने बोला कि नो, द विड्रो विल्सन हिमसेल्फ रिव्यूड द आइडिया ऑफ डायकोटोमी. डायकोटोमी को विड्रो विल्सन ने खुद रिव्यू किया था, है ना. कि फॉर एग्जांपल विड्रो विल्सन स्टेटमेंट इज एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम द पॉलिटिक्स, है ना. तो उसको हम लोग सेग्रीगेट नहीं कर सकते. फिर तुम्हारा फ्रैंक मार्टिन है, उसने क्या बात किया, फ्यूजन का बात किया है. यानी देयर इज ए ओवरलैपिंग बिटवीन द पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, है ना. तो इट कैन नॉट बी कंप्लीटली सेपरेटेड. अगेन दोज एस्पेक्ट दोज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द क्वेश्चन आंसर सेशन. और डेविड रॉबिन्सन है, उसने भी बात किया कि भाई एस्टैब्लिश, अगर आपको एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चाहिए तो मेरिट बेस्ड सिस्टम है, या फिर आपको डीपोलिटिसाइजेशन या impartial type of bureaucracy होना जरूरी है. Again that was the idea that Woodrow Wilson wanted to make the administration, he wanted to depoliticize it, make it impartial, but it should not be completely done away with the politics, because
पॉलिटिकल कंट्रोल तो चाहिए, है ना, जस्ट लाइक द आइडिया ऑफ पब्लिक ओपिनियन अगर नहीं होगा तो क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन अगर बहुत पावरफुल हो जाता है तो सिटीजन के राइट को ओवरटेक कर सकता है। डेस्पोटिज्म का जो क्वेश्चन आता है ना, द डेस्पोटिज्म इज bureaucrat have technical understanding, all of you will become bureaucrat and you have the technical understanding of the administrative system, so you will try to accumulate more and more power, है ना, that becomes that is the common tendency of the bureaucrat that has been analyzed by various scholars, है ना। तो उसके बाद हम देखते हैं कि निकोलस हेनरी का जो ट्वाइलाइट जोन है ना, तो ट्वाइलाइट जोन में क्या है, देयर इज ओवरलैपिंग, मींस देयर आर सम सेपरेट स्फीयर्स ऑफ स्टडी इन द एडमिनिस्ट्रेशन बट देयर आर आल्सो ओवरलैपिंग। जैसे पब्लिक पॉलिसी जब हम पढ़ेंगे तो इनिशियली क्या होगा, देयर वाज अ डिफरेंट स्कोप्स दैट व्यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम लोग देखते हैं कि नैरो स्कूल, नैरो व्यू है, ब्रॉडर व्यू है ना। तो वो अगेन हम लोग देखेंगे तो उसमें देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो इनिशियल आइडिया था, जैसे विड्रो विल्सन क्या बोलता था, सिस्टमैटिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, तो वो हमको एडमिनिस्ट्रेशन है। जो एक्शनेबल पार्ट है, द स्टेट इन एक्शन, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज द विजिबल एस्पेक्ट ऑफ स्टेट। तो वहां पे क्या हम लिमिट कर रहे हैं, नैरो कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो सरकार, जो हम देख रहे हैं, पुलिस है या ब्यूरोक्रेट्स है जो पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, दे आर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो एस्पेक्ट को प्लस में, लेकिन अब जब से ये पब्लिक पॉलिसी आया, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन से पास मिलाया, दो फ्यूजन या ओवरलैपिंग को इंक्रीज किया। तो अगेन दोज आइडियाज विल बी डिस्कस लेटर ऑन। द स्वरा, स्वरा इज अगेन, स्वरा मॉडल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी अभी जो काफी पॉपुलर है, again that has become, that is the current status, that means there is a reciprocal relationship between the politics and administration. For example, prime minister is also spoken in a meeting ki हमको क्या करना है, there should be intervention in the administration but not the political interference. Again he is talking of complementarity, interdependence between the politics and administration. अभी क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल है ना, दिल्ली में या केंद्र सरकार में यूनियन गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट बन गई, दे आर रिलाइंग ऑन द ब्यूरोक्रेट। अगर जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम्स है और पॉलिसी है, अगर ब्यूरोक्रेट उसको अच्छे से लागू नहीं करेगा तो अगेन दिस गवर्नमेंट में नॉट कम इनटू द पावर अगेन। सो द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स दे आर टेम्पोररी इन नेचर, दे आर इलेक्टेड, bureaucrats are selected, they are on the permanent basis. All the elected executive, they are relying on the bureaucrats for the implementation of policy, even into the policy making. Once we read the public policy, we will see how the bureaucrats, they are involved in the various stages of public policy, है ना। तो वहां पे क्या, पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन दोनों जगह ब्यूरोक्रेट का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम देखते हैं आजकल जो एमपी एमएलए फंड है ना, एमपीज एंड एमएलए दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन द पॉलिसी एग्जीक्यूशन, सांसद आदर्श ग्राम योजना, है ना, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि दैट इज ए पॉजिटिव व्यू ऑफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक कंट्रोल बढ़ गया, मीडिया का रोल बढ़ गया, पब्लिक ओपिनियन असर्टिव हो गया, सोशल मीडिया पर आजकल अकाउंटेबल बना रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। तो अगेन देयर आर मल्टीपल वेज टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अकाउंटेबल टू द सिटीजन। तो हम क्या देख रहे हैं, कंप्लीटली सेपरेट, इज इट पॉसिबल टू कंप्लीटली सेपरेट? नो, इट इज वेरी डिफिकल्ट। प्रैक्टिकली इट इज, दो थियोरेटिकली हम लोग एनालिटिकली जब हम देखते हैं वी कैन मेक ए सेपरेट स्टडी, बट once we go into the practical administrative affairs, when we have to manage the affairs of the state, so there is interdependence, reciprocal relation. Yeah, is there any doubt? Okay, I think in case if you have doubt, you can just ask. तो उसके बाद हम लोग जो उसके बाद जो डायकोटोमी का ये सारे कंसेप्ट, ये दीज आर द थिंकर्स दैट यू विल बी यूजिंग इन द मॉडल, इन द आंसर्स दैट यू विल बी राइटिंग ऑन द डायकोटोमी। उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था इमरजेंस का, फिर वो कंटिन्यू कैसे हुआ, उसका मल्टीपल रीइंटरप्रिटेशंस कैसे हुआ, और कंटेम्पररी व्यूज क्या है उसमें, निकोलस हेनरी और आप स्वरा मॉडल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी को कोट करना है इन द आंसर्स। अगेन विल डिस्कस इन द आंसर राइटिंग सेशंस। ओके, तो अगेन वंस यू रीड अबाउट द मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्ड है, टू यानी एडमिनिस्ट्रेयर, टू एडमिनिस्ट्रेयर मीन्स टू केयर, टू लुक आफ्टर, टू सर्व। तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो मीनिंग होता है ना, द टर्म, वो बहुत ही सॉफ्ट और हम्बल होता है। लेकिन हम लोग जब उसके मीनिंग्स को एलोबरेट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, फिर नैरो व्यू, ब्रॉड व्यू, जो हम डिटेल्स में देखेंगे अभी कि इसमें ना पॉपुलर स्कूल्स है, कई सारे पॉपुलर स्कूल्स क्या है, नैरो व्यू कौन डिफाइन करते हैं, जैसे साइमन है, ये लोग ने नैरो व्यू करता है कि यानी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब स्टेट इन एक्शन,
जो पॉलिसी एग्जीक्यूट कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है। ब्रॉड व्यू मतलब क्या हुआ, जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इंटायर स्टेट मशीनरी, है ना, चाहे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। जब हम सब चीजों को एक साथ, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, पेपर 2 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिटीजन सिविल सोसाइटी ग्रुप्स भी पढ़ते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी भी पढ़ते हैं। तो अगेन दे दैट इज द ब्रॉडर व्यू, है ना। तो ब्रॉडर व्यू आज आज के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जब एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, तो आजकल क्या एक नया पोस्ट एनपीएम मॉडल में क्या आएगा कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, नेटवर्क गवर्नेंस, ये सारे मॉडल्स क्यों डेवलप हुए, क्योंकि जब ब्रॉडर व्यू लेते हैं, अल्टीमेटली आवर टारगेट इज टू सर्व द सिटीजन, okay, that is the objective, and all the government machinery, all the energy that are there in the state, that should work together, there should be synergy, coordination, cooperation, networking होना चाहिए। अल्टीमेटली हमें क्या है, लोगों के सर्विस, है ना, बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस देना ऑब्जेक्टिव है। once we have to work upon the solving the problem of society or managing the affairs of the society, so again that will require all the machinery to work together in synergy। तो वो ब्रॉडर व्यू आ जाता है ना। फिर जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एनालाइज करते हैं, पॉलिटिकल व्यू भी है, कि पॉलिटिकल व्यू क्या है, पॉलिसी मेकिंग में जो रोल आता है ना, वी हैव द पब्लिक पॉलिसी स्कूल आल्सो। देन लीगल व्यू क्या आता है, लीगल लॉ, जैसे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, सीआरपीसी, आईपीसी, अगेन दो एडमिनिस्ट्रेटर विल हैव टू स्टडी दैट। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जब हम बात करते हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या रिफॉर्म होना चाहिए, लीगल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम में क्या रिफॉर्म होना चाहिए। तो दो एस्पेक्ट्स, अगेन दैट इज द व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, तो उसको भी हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। देन देर आर प्रोसेस व्यू, जैसे मान लो विड्रो विल्सन ने आइडिया दिया कि साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, देयर शुड बी टूल्स एंड टेक्निक्स व्हिच शुड बी डेवलप। अब वो टूल्स एंड टेक्निक जब डेवलप करेंगे तो हमको क्या प्रोसेस, जैसे गुली कैनार्विक ने आइडिया दिया पोस्ट कॉर्प का, कि प्लानिंग कैसे होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग देखते हैं, नॉर्मली 2 और मोर पीपल दे आर कमिंग टुगेदर एंड दे आर वर्किंग फॉर ए कॉमन पर्पस। अब वो कॉमन पर्पस अचीव करने के लिए क्या होगा, उनको दे हैव टू डिवाइड द वर्क, देयर शुड बी डिवीजन ऑफ वर्क, देयर शुड बी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी शुड बी डिवाइडेड, है ना, अकाउंटेबिलिटी शुड बी फिक्स। अगेन दो एस्पेक्ट पोस्ट ऑफ व्यू जो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे, यानी कि जो थिंकर्स पार्ट होगा, गुली कैनार्विक और क्लासिकल थिंकर है, फिर उसके बाद बाकी जो लेटर थ्योरेटिकल डेवलपमेंट है, अगेन विल गो इनटू द डिटेल्स। ठीक है, तो अगेन व्हाई आई एम पुटिंग ऑल दोस कंटेंट्स और डिस्कसिंग हियर, बिकॉज यू हैव टू यूज दोज आइडियाज इनटू योर आंसर्स, है ना। देयर आर स्टेटमेंट्स, इफ इट इज स्टेटमेंट बेस्ड ऑन नैरो व्यू, अब उसको कह देगा क्रिटिकली एग्जामिन। फॉर एग्जांपल, एडमिनिस्ट्रेशन इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, examine or critically examine, that means the statement is a narrow view of administration. Now you have to counter it with the you have to write a critical perspective using the broader school of public administration, broader view. It is not just about implementation of law, but it is also about the policy making, it is also about the networking with the citizen, empowering the citizen, है ना। तो वो जानना जरूरी है। तो दीज आर द सब्जेक्ट व्यू। मार्केट व्यू, जैसे एनपीएम मॉडल है, पोस्ट एनपीएम में फिर उसको सुधारने की कोशिश किया। एनपीएम में क्या मार्केट प्रिंसिपल्स आने चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर में, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, क्या हम प्राइवेट सेक्टर के टूल्स एंड टेक्निक्स को ला सकते हैं क्या, है ना। द इकोनॉमी एफिशिएंसी का जो फोकस होता है, तो वो मार्केट व्यू से आता है। मैनेजरियलिज्म जो आता है, अपन बात करते हैं, या न्यू टेररिज्म जब बोलेंगे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में, तो वो हम लोग देखेंगे किस प्रकार से मार्केट, स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट आएगा एक, उसमें क्या डू द ऑल द अफेयर्स ऑफ द स्टेट शुड बी मैनेज ओनली बाय द स्टेट, और इज द स्टेट कैपेबल टू मैनेज ऑल द अफेयर्स, ऑल द डिमांड्स ऑफ सिटीजन, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। सो अगेन इट नीड्स द हेल्प ऑफ other individuals, other energy, other groups, other institutions, for example the private sector। अभी इंडिया में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, इतने सारे रोड कंस्ट्रक्ट करने, इतने सारे सर्विसेज प्रोवाइड करना है, will it be possible for the government only to provide all the services, all the goods and services? Not possible. So again government is taking the help of private sector, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर हमें काम करना है सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए। लेकिन 90s के बाद जब हम देखेंगे जो इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक, जो अगला टॉपिक आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो इवोल्यूशन आता है, जो पोस्ट 90 का फेज है, दैट इज द एरा ऑफ सिटीजन एम्पावरमेंट आल्सो, द गुड गवर्नेंस कंसेप्ट, या वर्ल्ड बैंक का आइडिया जो है कि गुड गवर्नेंस के फीचर्स क्या हैं, गुड गवर्नेंस में किस प्रकार से सिटीजन सेंट्रिसिज्म जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगेन द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, अगेन दोज आर द एस्पेक्ट दैट वी विल बी स्टडीइंग इन द
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हमको होलिस्टिकली व्यू करना है पबेड को, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड कॉन्फ्रेंस में डिफाइन भी किया गया सोशली एम्बेडेड प्रोसेस है, यानी आप इकोलॉजिकल व्यू जो हम लोग देखेंगे कंपैरेटिव मॉडल में, वो इकोलॉजिकल व्यू भी रिफ्लेक्ट होता है विंडो बुक थर्ड कॉन्फ्रेंस जो 2008 में हुआ था। इन दैट कॉन्फ्रेंस पबेड हैज बीन डिफाइंड एज ए सोशली एम्बेडेड प्रोसेस ऑफ collective decision making and implementation for human flourishing of all. That means it has given a very broader definition of PubEd. तो these are the these are popular schools. ये अल्टीमेटली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जितने भी स्कूल्स है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर देम, जस्ट हैव एन आइडिया सो दैट वंस यू गेट ए क्वेश्चन वेयर इट इज बीइंग आस्क्ड, अगर ब्रॉडर व्यू का क्वेश्चन आ दिया तो नैरो व्यू के कुछ आइडियाज यूज कर लेंगे, लीगलिस्टिक है सब्जेक्ट मैटर पे अगर क्वेश्चन आ रहा है तो हमको ब्रॉडर कैसे इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस को इस प्रकार करना है सो दैट यू आर एबल टू गिव द अदर पर्सपेक्टिव, दैट इज द क्रिटिकल पर्सपेक्टिव आल्सो। ओके, तो देयर आर सम डेफिनेशंस, मल्टीपल डेफिनेशंस, कि हम लोग जैसे निग्रो का डेफिनेशंस को काफी कॉम्प्रिहेंसिव मानते हैं कि है ना, कि इट इज सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स, है ना, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी और फिर जितने ब्रॉडर व्यू, तो आप कोई भी एक या दो डेफिनेशन याद कर लें, है ना, इफ यू आर एबल टू रिकलेक्ट एटलीस्ट वन और टू डेफिनेशन, सो इट शुड बी काइंड ऑफ समरेटिव ऑफ ऑल द ओपिनियन दैट वी आर डिस्कसिंग, है ना। तो वो हो गया। फिर गवर्नमेंट इन एक्शन, अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट द गवर्नमेंट इन एक्शन, तो हाउ डू यू इंटरप्रेट द आइडिया ऑफ गवर्नमेंट इन एक्शन, वहां पे क्या, वो जो स्कूल ऑफ थॉट हमने देखा, नैरो व्यू, ब्रॉडर व्यू, अगेन दोज आइडिया शुड बी यूज्ड इन द दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कि इफ इट इज आस्क्ड पब्लिक एज ए गवर्नमेंट इन एक्शन। फिर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, अगेन नैरो व्यू, कि है ना, एक स्कूल बात करता है कि जो पब्लिक पॉलिसी बन गया उसको इंप्लीमेंट करने का काम किसका होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का होगा। फिर जो आइडिया होता है विजिबल साइड, आई थिंक ऑल ऑफ यू माइट हैव विटनेस्ड सम ऑफ द, once you go into the public sphere you interact with the public officials, पुलिस ऑफिसर है, उसके बाद तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट में अगर कहीं जाते हैं तो यू गो टू द डिस्ट्रिक्ट डीएम ऑफिस और एनी फॉर एनी डॉक्यूमेंटेशन पर्पस, सो यू कम अक्रॉस एडमिनिस्ट्रेशन, दे ऑल फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, है ना। तो ब्रॉडर व्यू में वो भी हम जानते हैं कि जो हर तरह का अधिकारी है, जितने भी लोग हैं, दे ऑल आर कंसिडर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो और उसके बाद जो मेजर डायमेंशन हम लोग है ना पबेड को डिवाइड करते हैं, मोस्टली दो पार्ट में हम लोग स्टडी करते हैं। दे आर, वन इज पबेड एज ए डिसिप्लिन, ना डिसिप्लिनरी क्वेश्चन है वेदर पबेड इज ए डिसिप्लिन, वेदर वी शुड स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए separate discipline or not, that is again the question that has been debated multiple times, will a question has also been asked on this aspect. Then pubed as a activity, तो नॉर्मली इट इज सेड दैट सिविलाइजेशन जब से आया तब से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, सम फॉर्म ऑफ rudimentary form of administrative system. Basically there were group of people, they were coming together, they were organizing things, managing the affairs of society, that is the only administration. तो पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन एज ए एक्टिविटी है दैट इज बीन एग्जिस्टिंग फ्रॉम द एंशियंट टाइम, पूरा मॉडर्न टाइम, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है या गुप्ता पीरियड टू मेडिवल एरा टू मॉडर्न एरा, तो हर जगह हम लोग क्या देख रहे हैं, लोगों के अफेयर्स को मैनेज करना है, लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। फॉर दैट वी नीड ए मशीनरी, वी नीड ए मैकेनिज्म, इंस्टीट्यूशंस व्हिच कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सिटीजन और पीपल, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया, है ना। तो वो हम पबेड एज ए एक्टिविटी जब हम पढ़ते हैं तो देयर हैज टू बी कंप्लीट सेपरेशन, कि जब हम है ना वंस वी थिंक, अगर किसी भी क्वेश्चन को एनालाइज करना है तो वी हैव टू कीप इन माइंड whether question is asking you to analyze the administration from the activity perspective or from the discipline perspective। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम पबेड को एज ए डिसिप्लिन की स्कोप की बात करेंगे या व्यू की बात करेंगे, तो पबेड को जब हम डिसिप्लिन लाते हैं हम एक्शनेबल पार्ट भी ऐड कर देते हैं, जब अगर ब्रॉडर आंसर लिखना है ना। तो ये मेनली मीनिंग, और इसका नेचर, जैसे नेचर भी ब्रॉडली सिमिलर टू द मीनिंग है या स्कोप है, उससे काफी ओवरलैपिंग है। दीज आर द कंसेप्ट, कि डायरेक्टली क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। दीज आर द एसेट्स व्हिच यू कैन यूज देम इन द आंसर्स, नैरो व्यू, ब्रॉड व्यू जो हमने डिस्कस किया। देन अगेन द क्लास, जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी पढ़ेंगे, थिंकर्स पढ़ेंगे, तो वहां पे हम देखेंगे हाउ द आइडियाज हैव बीन सेग्रीगेटेड। फॉर एग्जांपल, fuel will focus on the managerial view of the organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इफ यू लुक एट the hierarchy of organization, ये पिरामिडिकल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं या मेंबर्स हैं, दे विल बी मैनेजिंग द अफेयर्स, सो दे आर इन्वॉल्व इन द मैनेजरियल प्रोसेस। सो एंड देन बट देयर इज अ काउंटर, कि भाई ऐसा नहीं कि जो ऊपर में काम कर रहा है सिर्फ दे आर द एडमिनिस्ट्रेटर,
बल्कि जो नीचे लेवल जो पब्लिक से इंटरेक्ट कर रहा है, स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी लोगों से जो इंटरफेस हो रहा है, टू द प्राइम मिनिस्टर, टू द टॉप लेवल, दे ऑल आर इन्वॉल्व इन द मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। तो हम लोग इंटीग्रल व्यू, यानी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दे ऑल आर पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसको हम लोग इंटीग्रल व्यू यानी इंटीग्रेट करते हैं। मैनेजरियल मतलब टॉप मैनेजमेंट लेवल का है। उसी तरह एक और नेचर में जब एनालाइज करते हैं, we look at the post-op view और सब्जेक्ट मैटर व्यू। सब्जेक्ट मैटर व्यू क्या होगा, जैसे हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, तो एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट होता है, पॉलिसी होता है, उस पर अपन डिस्कस करते हैं। पोस्टकॉप में क्या होता है, टेक्निक्स, टूल्स एंड टेक्निक्स, जो जितने क्लासिकल थिंकर्स है, टेलर है, फ्यूल है, गुली कार्विक, दे ऑल वर लुकिंग फॉर टूल्स एंड टेक्निक्स, है ना, प्रिंसिपल्स व्हिच कैन बी हेल्प, व्हिच कैन हेल्प इन द ऑर्गेनाइजिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंटली। जो मैनेजमेंट का जो इक्वेशन हम लोग जेनेरिक व्यू हमने डिस्कस किया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेजमेंट से लिंक कर दिया गया। तो पोस्टकॉप व्यू में क्या है, प्लानिंग है, यानी कि कोई अगर मान लो नीति आयोग बना है, तो नीति आयोग क्या करता है, प्लानिंग बना के दिया गवर्नमेंट को। फिर हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं कि क्या क्या रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स क्या चाहिए, मैन पावर क्या चाहिए। फिर स्टाफिंग करते हैं, है ना, ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू बी रिक्रूटेड इनटू द सिविल सर्विसेज। अब यू विल बी, दैट इज द आइडिया ऑफ स्टाफिंग। देयर शुड बी राइट पर्सन एट द राइट पोजीशन, है ना। तो उसके बाद डायरेक्शन है, कोऑर्डिनेशन है, उसके बाद रिपोर्टिंग, बजटिंग, जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिकली पोस्टकॉप इज ए एक्रोनिम। अब ये एक्रोनिम क्या है कि हमें एक टेक्निकल जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है या ऑर्गेनाइजेशनल व्यू करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि पोस्टकॉप इज ए बेसिकली है मैनेजरियल टूल्स टेक्निक्स, जिसपे हम लोग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और ये सब प्लानिंग, है ना, कैसे ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंट बनाया जाए। ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल व्यू भी है और डिस्क्रिशनिस्ट व्यू है। इंस्ट्रूमेंटल क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ब्यूरोक्रेसी क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, किसके हाथ में, सरकार के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है। सरकार अगर कोई मान लो इलेक्शन होता है, इलेक्शन में क्या होता है, द पॉलिटिकल पार्टी विल कम अप विद द इलेक्शन मैनिफेस्टो। पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा, प्रॉमिस करेगा कि हम अगले 5 साल में ये कर देंगे, ये, है ना, ये डेवलप करा देंगे, या फिर पॉवर्टी दूर कर देंगे, एजुकेट कर देंगे, हेल्थ एजुकेशन अच्छा कर देंगे। तो देर आर मल्टीपल प्रोमिसेस विच आर मेड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। अब वो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो जो तैयार होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज, फिलोसफी पे बेस्ड होता है, जो पेपर 2 में पढ़ते हैं। फिर वो जब पॉलिसी, जब एक बार गवर्नमेंट पार्टी पावर में आ जाती है, अगेन दे हैव टू इम्प्लीमेंट दोज प्रोमिसेस, है ना, प्रॉमिस को इंप्लीमेंट करना है। तो वो कैसे आएगा, पॉलिसी बनाएगा। पॉलिसी में सब्जेक्ट मैटर व्यू इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर जब उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं, तो वहां पे टूल्स एंड टेक्निक्स, पोस्टकॉप व्यू इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे स्मार्ट सिटी मिशन आया, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बनाए गए, या फिर रुर्बन मिशन है। तो इस प्रकार से कोई भी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है, तो उसमें हम क्या देख रहे हैं, नेचर जब देखते हैं तो उसमें एक होलिस्टिक व्यू मिल रहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिसी मेकिंग से, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन से, उसका एवेल्युएशन से, फीडबैक, रिव्यू, सब इंटायर वर्क इज बीइंग डन बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड द सिविल सोसाइटी ग्रुप्स। ठीक है। तो हम लोग उसके बाद पब्लिक एज ए डिसिप्लिन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन पे क्वेश्चंस, अगेन मल्टीपल क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन द डिसिप्लिनरी स्टेटस, शुड बी कंसीडर पब्लिक एज ए डिसिप्लिन और नॉट। ओके। देन प्रोफेशन में क्या है कि एक ऑर्गेनाइज कोड होना चाहिए, प्रोफेशनल कोड होना चाहिए। तो अभी है या नहीं है, अमेरिका में क्या, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसने क्या किया, कई सारे जनरल्स आते हैं, गाइडलाइंस इशू करता है। तो अगेन दो, दैट गिव्स ए प्रोफेशनल टच। फॉर एग्जांपल जैसे हेल्थ प्रोफेशनल्स या प्रोफेसर्स है, दे हैव देयर ऑन, लॉयर्स हैं, दे आर, दैट इज कंसीडर्ड एज ए प्रोफेशन। लेकिन अभी जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देयर इज स्टिल लैक ऑफ व्यूज ऑन द प्रोफेशनल एस्पेक्ट। उसके बाद पब्लिक एज ए साइंस, जैसे विडो विल्सन ने बोल दिया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस बनाना है। साइंस कैसे बनेगा, टूल्स एंड टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स, इकोनॉमी एफिशिएंसी फोकस, रिजल्ट ओरिएंटेशन, कंपैरेटिव स्टडी, इंपेरिकल स्टडी होना चाहिए। लेकिन क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ साइंस बन सकता है, क्या 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 हम एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस से इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सोसाइटी का अफेयर्स को मैनेज कर रहे हैं। अगेन द सोसाइटी इटसेल्फ इज इवॉल्विंग, इट इज कैन नॉट बी वन साइज फिट ऑल, तो हो नहीं सकता है। तो अगेन वहां पे पब्लिक आर्ट और जो साइंस का डिबेट है वहां पे भी हम लोग देखते हैं। देन फिलोसफी ऑफ पबेड, कि पबेड का फिलोसफी क्या है, पब्लिक वेलफेयर है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो हम लोग पढ़ते हैं स्टेट थ्योरी में, कि अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट क्या है, एक पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, एक सिटीजन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट, कि हम, आप मुझे चुन के भेजो, हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को आपके वेलफेयर के लिए काम कराएंगे। वी विल मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वर्क फॉर यू, दैट इज द
दैट इज द फिलोसफी कि देर आर पब्लिक इंटरेस्ट व्यू, देर आर मल्टीपल स्कूल्स ऑफ थॉट। तो हमको एग्जैक्टली फिलोसफी ऑफ पबेड आएगा तो एक जनरल आइडिया भी होना चाहिए कि आखिर पबेड जो एथिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं, गवर्नेंस जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो पबेड को हम साइंस से, सोशल साइंस से, तो ये डिसिप्लिनरी डिबेट। तो जब हम नेचर की बात करते हैं तो कोई पूछेगा पबेड साइंस है क्या, पबेड आर्ट है क्या? तो देर आर मिक्स ऑफ पॉजिटिव साइंस या नॉर्मल साइंस पे हम लोग डिबेट आगे देखेंगे, ठीक है। फिर स्कोप पे हम लोग देखते हैं कि जैसे ना विलोवा का नॉर्मली है ना, कई बुक में भी रिफर किया गया विलोवा का, कि ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर जो सिलेबस है, जब भी अगर स्कोप ऑफ पबेड कोई पूछता है ना, इफ यू गेट ए क्वेश्चन ऑन द scope of public administration, you should immediately recall the syllabus of PubEd। उसमें क्या है कि सिलेबस में सारे ऑटोमेटिकली यू विल गेट टू नो द स्कोप ऑफ पबेड, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या पढ़ाया जाता है, दैट इज ओनली स्कोप, है ना। तो स्कोप हम लोग नॉर्मली इससे भी आइडिया लग जाता है। फिर उसके बाद उसी को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया कि भाई स्कोप जो है पबेड का, उसको 3M बढ़ा दिया, एक है ना, मैक्विन ने दे दिया, मैन यानी जो मैन पावर है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, ब्यूरोक्रेट्स है, उसके मटेरियल्स एंड मशीन्स, जो टूल्स एंड टेक्निक्स है, मेथड्स है, तो इन 3 पार्ट में बांट दिया। So they are also trying to put the scope of PubEd into some framework, and that is not the comprehensive। ऐसा नहीं कि जो one view है that is more comprehensive। हमें बस आइडिया होना चाहिए कि स्कोप में हम जब हम बात करेंगे तो देर आर सिलेबस ऑफ PubEd, दैट इज आल्सो स्कोप। उससे हम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, या है ना पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो दे आर द स्कोप्स। मैन में वही है कैटेगरी, चाहे उसको लिंक करना है, कोई भी एक दो आइडिया होना चाहिए, तो सो दैट यू आर एबल टू डिस्कस। कुछ जैसे बिफनर है, उसने बोला कि एक प्रिंसिपल्स है और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन, यानी उसका जो एक्शनेबल पार्ट, थ्योरी एंड प्रैक्टिस, जो पेपर 1 और पेपर 2। तो ये बेसिकली स्कोप्स है जो अलग अलग थिंक करने। यू डोंट हैव टू रिमेंबर देम, यू हैव टू जस्ट हैव एन आइडिया कि स्कोप को हम जब पढ़ते हैं तो देर आर वेरियस ग्रुप्स, वेरियस कैटेगरीज ऑफ स्कोप्स। और स्कोप हम पबेड का जब स्कोप है ना क्वेश्चन आता है, हैज द स्कोप ऑफ पबेड इवॉल्व और श्रिंक, है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन से हम लोग ने इंटरप्रिटेशंस पे क्वेश्चन आते हैं, वो हम लोग अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट को भी यूज कर सकते हैं, ठीक। तो अभी करंट में जो अगर कॉन्टेम्पररी व्यू आता है, ड्वाइट वाल्डो का व्यू बहुत फेमस है। तो व्हेनेवर यू हैव टू कंक्लूड ऑन द आइडिया ऑफ स्कोप, क्योंकि हमने देखा अलग अलग स्कूल है, अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो अब वी शुड हैव सर्टेनिटी, सम आइडिया अबाउट द स्कोप की भाई क्या एक कॉन्क्रीट व्यू आना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग विड्रो विल्सन हैज गिवन द आइडिया ऑफ कोर एंड पेरिफेरी। मींस जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, देयर आर सम कोर एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन that has to be done by the public administrators, not by the private sector। मान लो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक अफेयर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, या स्ट्रेटेजिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो स्टेट का होता है, तो पुलिस है ना, लॉ एंड ऑर्डर है, those are the aspect that is core to the existence of a state। the why state has a public legitimacy। अब उसमें अगर लोगों को आना है, स्टेट को आना है, तो उसमें क्या है, स्टेट विल हैव टू परफॉर्म सर्टेन कोर एक्टिविटी दैट कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, है ना, उसको हम आउटसोर्स नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट आउट नहीं कर सकते हैं। बट पेरिफेरियल एरिया पे तो देर आर सम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का आइडिया है, कुछ स्टेट और सरकार है ना, प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करता है, और कुछ ऐसा है कि जो कंप्लीटली हम आउटसोर्स कर सकते हैं, प्राइवेटाइज कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, दैट इज आल्सो द पेरिफेरियल पार्ट। तो पेरिफेरी चेंज होता रहता है। स्कोप जो है अमेविक टाइप का आइडिया जो हम लोग डिस्कस करते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि भाई हाउ द स्कोप है ना, स्कोप ऑफ पबेड इट हैज बीन वैसिलेटिंग, है ना, वो चेंज होता रहता है कोर, लेकिन कोर अभी तक स्टेगनेंट या फिक्स है, कोर फिक्स। तो दैट इज गिविंग आल्सो द ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल आइडिया टू द डिसिप्लिन ऑफ पबेड। तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिग्निफिकेंस पे क्वेश्चन आता है, तो जो हमने अब तक डिस्कस किया फ्रॉम वुड्रो विल्सन टू नाउ, है ना, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे सिटीजन इंपावर हो रहा है, लोग अपने राइट्स के प्रति अवेयर हो रहे हैं, दे आर बिकमिंग मोर एक्टिव, क्या दे आर डिमांडिंग भाई हमको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बढ़िया चाहिए, पॉल्यूशन नहीं चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी बढ़िया हो, पुलिस सिस्टम बढ़िया हो, लॉ एंड ऑर्डर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, देयर शुड नॉट बी एनी कंप्रोमाइज। तो अल्टीमेटली कहां पे सब जा रहा है बातें, दे आर गोइंग टू अगेन बैक टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो again the idea the administration is again gaining lot of importance in the contemporary time। तो वो आइडिया अपन है ना स्कोप, नेचर, मीनिंग के बाद डिस्कस कर सकते हैं। फिर अपन ना जैसे इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो अलग अलग फेज में डिस्कस इवॉल्व कैसे हुआ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, चलो ठीक है, विड्रो विल्सन ने एक ऐसे लिख दिया कि ठीक है कि स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए,
It should be studied as a separate discipline. There should be focus on tools and techniques. There should be development of universal principles. Comparative study होना चाहिए. 3E पे focus, business like approach, dichotomy. तो जो terms हम बोल रहे हैं, basically all of you should also be able to recall them. You should be, कल जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आपको जब भी पढ़ना है, जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ाई करो, टेक ए व्हाइट शीट, है ना, एंड ट्राई टू रिकॉल दोज पॉइंट्स दैट यू आर रीडिंग इन द particular topic or chapter. Then you try to recall those ideas, try to make a framework, mind map, chart, flow charts. उससे क्या होगा, इंटरकनेक्टिविटी आसान हो जाती है ना. तो वंस वी स्टडी अबाउट द इवोल्यूशन, अब देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बात तो कर दिया विडोविल्सन ने कि ठीक है, वी शुड हैव ए सेपरेट डिसिप्लिन, बट हु वर द थिंकर्स हु कैरीड इट फॉरवर्ड, है ना. देयर विल बी सम ऑफ द later thinkers who will take up some of the ideas या मोस्ट ऑफ द आइडिया ऑफ विडोविल्सन. अब उसी के आधार पे कोई डाकोटोमी पे काम किया, कोई साइंस को डेवलप करने में हेल्प कर रहा है, कोई कंपैरेटिव स्टडी करने लगा, कोई पब्लिक कंट्रोल को कैसे इफेक्टिव बनाया जाए, जैसे अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल चैप्टर है, उसमें हम लोग पब्लिक ओपिनियन के बारे में पढ़ते हैं. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो बिजनेस लाइक अप्रोच है, उसमें एनपीएम का मॉडल आएगा. फिर एनपीएम को रिजेक्ट किया जाता है कि यानी बिजनेस लाइक, हम स्टेट को बिजनेस से इक्वेट नहीं कर सकते हैं, मैनेजमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली प्राइवेटाइज नहीं कर सकते हैं. तो अगेन देयर विल बी क्रिटिसिज्म बाय द गुड गवर्नेंस बाय द पोस्ट एनपीएम मॉडल, जो इसके वीकनेस या लिमिटेशन को ओवरकम करता है. तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इनिशियल जो 80-87 से लेकर 90-26 का जो फेज है, उसको ब्रॉडली दो पार्ट में बांटते हैं हम लोग. एरा ऑफ डायकोटोमी कहते हैं. एक है एनालिटिकल पार्ट, यानी थ्योरेटिकली हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स से अलग कर रहे हैं. जो सेकेंड एस्पेक्ट है, 1900 में एक किताब लिखा गया था फ्रैंक गुडनॉ के द्वारा, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि देयर हैज बीन कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कि भाई पॉलिटिक्स को अलग करो और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग करो. बिजनेस लाइक अप्रोच होना चाहिए. मैनेजरियल व्यू यानी जेनेरिक व्यू डोमिनेंट हो गया, प्रीडोमिनेंट व्यू था इन द इनिशियल डेरा, एंड इट हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लॉट ऑफ टूल्स. पीओसीसी का, फ्यूल का जो आइडिया है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन है, या कुली कैनाडवी का पोस्टकॉम है. तो मल्टीपल थिंकर्स दे हैव कम अप विद देयर मल्टीपल प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, एंड दैट हैज बिकम क्वाइट यूनिवर्सल. क्योंकि जो टेलर का आइडिया जब हम लोग डिस्कस करेंगे, तो टेलरिज्म बिकेम ए न्यू फिलोसफी, न्यू आइडियोलॉजी. कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या है, सोसाइटी में अगर हर जगह एफिशिएंसी का बात हो रहा है, हर जगह बेस्ट तरीके से काम करना है, तो वन बेस्ट वे का जो आइडिया था टेलर का, टाइम एंड मोशन स्टडी या वेज पेमेंट का सिस्टम है, तो हाउ मनी इज एक्टिंग एज ए मोटिवेटर. तो डायकोटोमी का जो एरा था, उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जेनेरिक व्यू पे फोकस ज्यादा है. जेनेरिक व्यू में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेजमेंट से इक्वेट कर दिया गया. अब उसके जितने भी थिंकर्स होंगे उस दौरान, तो वो उनका एक कॉमन आइडियोलॉजी है. ये इवोल्यूशन जो टॉपिक है, दैट इज अगेन गोइंग टू हेल्प यू इन फ्रेमिंग द मैक्रो पॉइंट्स, है ना. मैक्रो पॉइंट्स जब सिमिलर पॉइंट्स होते हैं, यू कैन ब्रिंग टुगेदर होलिस्टिक आइडिया ऑफ क्लासिकल थिंकर्स. तो डायकोटोमी का एरा है. डायकोटोमी में पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन से अलग कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेजमेंट के पास ले आया. तो यानी एडमिनिस्ट्रेशन वाज इक्वेटेड विद मैनेजमेंट. एक काफी पॉपुलर टर्म है ना, कई लोग यूज करते हैं कि देयर इज इन द पब्लिक, देयर इज नथिंग पब्लिक अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. यानी देयर इज नथिंग पब्लिक अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिकनेस वाला या गवर्नमेंट या स्टेट वाला कुछ नहीं. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज जेनरिक, जेनरिक, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वेटेड विद मैनेजमेंट. वो स्टार्टिंग का जो एरा था 1900 से 1926 का दौर, तो दैट वाज एरा ऑफ डायकोटोमी. अगेन उसके बाद क्या होगा, इट हैज लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पबेड एज अ साइंस. उसको हम लोग जब प्रिंसिपल एरा भी बोलते हैं, जो सेकेंड फेज है, प्रिंसिपल बिल्डिंग एरा. कई सारे थिंकर्स, दो थिंकर्स, दे हैव कम अप विद देयर ओन मॉडल्स, प्रिंसिपल्स इन द 90s ओनली. 1927 के 26 के पहले आया, लेकिन दैट हैज रीच द डिसिप्लिनरी जेनिथ, है ना, जो हम लोग बोलते हैं डिसिप्लिनरी जेनिथ आया. यानी इतने टूल्स एंड टेक्निक्स, इतने प्रिंसिपल्स, और किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में अप्लाई करो तो दे वर गिविंग गुड रिजल्ट्स. एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बन रहा था. तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्कॉलर्स दे स्टार्टेड एंजॉयिंग लॉट ऑफ प्रोस्पेरिटी इन द, दे वर गेटिंग लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. तो पॉलिटिकल साइंस वाले थे, सारे लोग जेलसी हो गए, मैनेजमेंट साइंस वाले भी जेलसी हो गए. तो प्रिंसिपल बिल्डिंग एरा में हम उसमें देखते हैं कि यूनिवर्सल थ्योरीज बिल्ड होने लगा, टूल्स एंड टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स काफी पॉपुलर हो गए. टेलरिज्म वाज अगेन पॉपुलराइज्ड अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो फ्यूलिज्म है, टेलरिज्म है. फिर वेबर का जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है, अगेन ब्यूरोक्रेटिक मॉडल विल अगेन बिकम लॉट ऑफ, इट विल गेन पॉपुलैरिटी.
इंडिया में तो जो मकाले का आइडिया है ना, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं, मेरिट बेस्ड सिस्टम तो हम लोग 19th सेंचुरी में ले आए, है ना। अगेन दैट इज रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ मेरिट बेस्ड सिस्टम या एज। तो जितने भी डेवलपमेंट हुए, दे ऑल आर कनेक्टेड टू द सम ऑफ द आइडिया ऑफ विड्रो विल्सन। इसलिए जब विड्रो विल्सन को हम लोग फादर ऑफ पवेट बोलते हैं, यानी उसके जो मेजर कंट्रीब्यूशन है, आर दोज कंट्रीब्यूशन स्टिल रेलेवेंट, आर दे दोज कंट्रीब्यूशंस आर स्टिल डिबेटेड इन द एकेडमिक डोमेन। So those are the important aspect. That's why he is considered as a father, originator of many of the ideas that we discuss in the contemporary time. फिर उसके बाद आता है कि भाई एक बार जब पॉलिटिकल फॉरवर्ड वाले जितने थिंकर्स थे, दे बिकम वेरी पॉपुलर, ऑर्गेनाइजेशनल द रेपुटेशनल जेनिथ पे आ गया सबको सोसाइटी में कि एडमिनिस्ट्रेटर, कंसल्ट एडमिनिस्ट्रेटर, जस्ट लाइक डॉक्टर सोसाइटी के प्रॉब्लम को, इल्स को दूर करने के लिए किसको कंसल्ट करना है, एडमिनिस्ट्रेटर को। बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, थिंकर्स होने चाहिए जो बढ़िया सॉल्यूशन मॉडल लेके आए। लेकिन क्या हुआ, जब हम एडमिनिस्ट्रेशन का जो चैलेंज, यानी एक एरा आया जिसमें क्वेश्चन किया गया, जैसे साइमन है, बर्नार्ड है, जो बिहेवियरल थिंकर्स, दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ पवेट। क्लासिकल थिंकर के जितने मॉडल्स थे, प्रिंसिपल्स थे, दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि ये जो आपने मॉडल दिया, नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, इज देयर एनी इंपेरिकल एविडेंस, है ना, हैव दे यूज्ड द इंपेरिकल एविडेंस, और इज इट बेस्ड ऑन देयर ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस, है ना। टेलर है, फ्यूल है, Gulick and Arvik, they have come up with these models based on their narrow experiences, their personal or opinion. तो वो नॉर्मेटिव व्यू आ गया, तो इंपेरिकल व्यू वर्सेस नॉर्मेटिव व्यू का डिबेट आता है। तो वहां पे हम लोग देख रहे हैं बिहेवियरल थिंकर्स क्या करते हैं, दे हैव क्वेश्चन द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल थिंकर्स, द यूनिवर्सलिटी ऑफ द प्रिंसिपल्स, द क्लेम ऑफ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो दैट वाज एरा ऑफ चैलेंज। उसके बाद फिर चैलेंज होगा तो रिएक्शन भी होगा। तो कुछ साइमन खुद ही रिएक्शन में एक बुक लेके आया, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, बर्नार्ड अपनी थ्योरी लेके आएगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो 1940s और 50s में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो फाउंडेशन था, डायकोटोमी को भी रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद साइंस, क्लेम ऑफ साइंस को रिजेक्ट कर दिया गया, उसके प्रिंसिपल के यूनिवर्सलिटी को क्वेश्चन कर दिया गया। तो दैट इज एरा ऑफ चैलेंज। फिर आता है कि 1950s में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन अमेरिका देयर वर लॉट ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस, सोशल क्राइसिस, सिविल वॉर था, वियतनाम वॉर में अमेरिका फेल कर रहा है, तो यानी वहां पे जो साइक्लोन्स है उसको मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दे हैव बिकम इंस्ट्रूमेंटल, हम तो इंस्ट्रूमेंट है, हमें कुछ ऑर्डर आएगा तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ब्यूरोक्रेट बिकम टू मच टेक्निकल, द पब्लिक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, है ना, इट वाज एक्टिंग लाइक ए इंस्ट्रूमेंट। हमको कुछ काम नहीं है, जस्ट वट एवर द ऑर्डर्स दैट इज गिवन बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, वी विल जस्ट इम्प्लीमेंट इट। तो वो उससे क्या हुआ, टेक्निकलिटी आ गया, इंपेरिसिज्म आ गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए इंस्टीट्यूशन, एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज करने लगे। तो फिर प्रॉब्लम क्या हुआ, उससे लोगों के जो नीड्स चेंज हो रहे थे, डिमांड्स थे, फुलफिल नहीं हो रहा था। द ब्यूरोक्रेट्स दे वर नॉट रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ सिटीजन। अब उससे क्या होगा कि जो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन का जो गैप था उसको रिजेक्ट किया गया। ये डायकोटोमी जो है एक सिलोस क्रिएट कर रहा है, यानी सिटीजन और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट वाज बिकमिंग ऑब्स्टेकल, है ना। तो पॉलिसी बन तो अच्छा रहा है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो वो प्रॉब्लम क्या हुआ, डायकोटोमी के कारण जो है ना प्रॉब्लमेटिक हो गया। तो डायकोटोमी रिजेक्ट, जो मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हमने देखा फ्रैंक मार्टिन के द्वारा, निकोलस हैंडी के द्वारा, है ना, डेविड रोजिनबॉल, और उसके बाद मोहित भट्टाचार्य, ऑल ऑफ देम हैव रीइंटरप्रेटेड द आइडिया ऑफ डायकोटोमी। तो वहां पे हम लोग देख रहे हैं इट हैज गिवन राइज टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए पॉलिटिकल साइंस 1950 से 70। इसमें पब्लिक पॉलिसी स्कूल डेवलप हुआ कि भाई पब्लिक पॉलिसी में भी ब्यूरोक्रेट्स का रोल है। ऑल द सेक्रेटरिएट दैट वी रीड इन द पेपर टू, that is that gives us idea how the bureaucrats are engaged in the policy making process, because they have the bureaucratic experience, ground experience है, they have the understanding of the limitations of the government। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव 5 साल के लिए आता है, लेकिन ब्यूरोक्रेट परमानेंटली है ना रिक्रूटेड है। तो वो दे हैव द ग्राउंड, दे आर अवेयर ऑफ ग्राउंड रियलिटीज, दे नो द लिमिटेशंस, दे हैव द आइडिया ऑफ, दे मेंटेन द कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी इन द गवर्नेंस। वहां पे हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो रिलेशनशिप है, पब्लिक पॉलिसी स्कूल हो या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो इमरजेंस है, उसमें भी हम लोग देखते हैं कि डायकोटोमी को रिजेक्ट करता है और एक पॉलिटिक्स को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्लोजर आता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, अब उसमें कई सारे स्कॉलर जो थे पॉलिटिकल साइंस में जाने नहीं चाहते थे, पेरेंट्स अपने डिसिप्लिन में, तो कुछ लोग चले गए मैनेजमेंट साइंस में, जो हम लोग बाद में जाके न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और ये सब जो इमर्ज होता है उसका बेसिस कहीं ना कहीं
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए मैनेजमेंट साइंस जब हम लोग देखते हैं, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वार्टरली मैगजीन पब्लिश हुआ था 1956 में, एंड दैट हैज बिकम लैंडमार्क ईयर फॉर द कंसिडरिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए मैनेजमेंट साइंस। ठीक है, तो ये सारे फेजेज हैं। तो व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड कि इतने सारे जो फेजेस दिए हुए हैं, कि आपको हर फेज का मैक्रो कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए, मेजर थीम्स क्या क्या है, मेजर कंट्रीब्यूटर्स क्या है हर फेज के, और उससे क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं एनालिस्ट, सिर्फ आपको थीम्स के मतलब एनालिटिकल क्वेश्चन आता है कि भाई डिस्पाइट 6 ओवरलैपिंग पैराडाइम्स, व्हाई पबेड स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेट इट्स डिसिप्लिनरी स्टेटस, हाउ द डिफरेंट पैराडाइम्स, या पर्टिकुलर पैराडाइम पे भी क्वेश्चन आता है, हाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्डेड टू द चैलेंज, या 1970s के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट क्या क्या था, 1990s के बाद का डेवलपमेंट क्या रहा, है ना, या बिफोर 1970 क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो मल्टीपल क्वेश्चंस आर फ्रेम ऑन दीज एस्पेक्ट्स, है ना, इसलिए यू हैव टू हैव सम आइडिया, जेंडर एक जेंडिक पॉइंट्स कुछ है ना, यू हैव टू प्रिपेयर सम ऑफ द फैक्ट्स। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। डिसिप्लिन में हम लोग जो देखे कि भाई एज ए डिसिप्लिन एज एन एक्टिविटी हम लोग देख लिए पबेट एज ए एक्टिविटी क्या है कि एंशियंट टाइम से एज एन एक्टिविटी अर्थशास्त्र या प्लेटो का आइडिया, अरिस्टोटल, मैकियावेली, so all of them all of them have also talked about administration as an activity, but none of them raised the question of separate study of public administration as a separate discipline. इसलिए एक्सक्यूज मी सर। हाँ, या प्लीज। सर, a friend of mine is waiting in the waiting room. ओके ओके, जस्ट मिनट। ओ yeah, just I'm putting them into this. Yeah, I think others can unmute themselves. तो अभी तक हम लोग ना, जैसे कुछ लोग आई थिंक काफी लेट हो गए, तो कोई बात नहीं है ना, तो हम लोग अगेन है ना, जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो उसमें बाकी चीजें जो हमने डिस्कस किया, वट एवर वी हैव डिस्कस, अगेन वी विल ट्राई टू रिकलेक्ट एंड हाउ वी विल बी यूजिंग दोज आइडियाज इनटू द आंसर्स, अगेन विल मेक यू गो थ्रू द मेनी ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट, है ना, व्हिच कुड बी आस्क्ड अगेन इन बाय द यूपीएससी, है ना। तो क्वेश्चन आंसर सेशन जो डे आफ्टर टुमारो विल बी कंडक्टिंग, इन दैट विल हैव ए थॉरो डिस्कशन ऑफ all the separate aspect again that we are discussing. So multiple revision objective क्या है, you should also go through the notes, you should come up with the ideas, so that day after tomorrow once we have the question answer sessions you are able to participate, you are also we'll try to put the questions before beginning of the session in the morning itself, so that you can come up with the after brainstorming the questions, so you are also engaged in the discussion. ठीक है। तो अभी हमने एवोल्यूशन ऑफ पबेट व्हाटएवर थिंग्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग, कि हाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन इट हैज इवॉल्व फ्रॉम राइटिंग्स ऑफ विड्रो विल्सन इन 1887, हाउ इट हैज इमर्ज एज ए सेपरेट डिसिप्लिन, है ना। तो दोज आर द एस्पेक्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड। देन देयर आर मल्टीपल, बेसिकली देयर आर टू थिंकर्स, इफ यू लुक एट द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसको जो कैटेगराइज किया, देयर आर सम थिंकर्स हु विल मेक ए मैक्रो एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट, कि अब उसको दो मेजर थिंकर, एक तो हम लोग गोलम्बेस्की पढ़ते हैं और निकोलस हेनरी पढ़ते हैं, दे हैव यूज्ड द आइडिया ऑफ लोकस एंड फोकस, कि देयर इज सम व्हाट टू स्टडी सब्जेक्ट मैटर, फोकस क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, आखिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो स्टडी करेंगे तो दैट शुड बी सम एनालिसिस, मैटर ऑफ एनालिसिस, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, तो दैट इज द फोकस। लोकस क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूशन वेयर इट इज लोकेटेड, तो अब ये दो थिंकर्स गोलम्बेस्की और निकोलस हेनरी, whenever you get a question on the evolution of PubMed into different paradigms, overlapping paradigms, उसमें है ना हम ये सारे कंसेप्ट को यूज करते हैं, कि हाउ द आइडिया, इनिशियल आइडिया, पैराडाइम, 3-4 पैराडाइम गोलेम्बस्की ने बांटा है कि डायकोटोमी का फेज था, तो सेम थिंग जो देखो, एक बार क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हमें पता चल गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो विड्रो विल्सन का जो स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का पब्लिकेशन है, वहां से लेकर अब तक जितने भी थ्योरेटिकल डेवलपमेंट बीच में हुए, जो भी अलग अलग टॉपिक्स में या अलग अलग चैप्टर्स में हम लोग पढ़ते हैं, दे ऑल आर पार्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ पबेट। अब उसको कैटेगराइज करना है इनटू द डिफरेंट पैराडाइम्स, ऑल द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल ऑल द डेवलपमेंट्स। तो जैसे मान लो कि अब यूके के अंदर अपन पढ़ते हैं कि 90s 70s 80s के दौर में
यूके के अंदर थैचरिज्म आ गया, यूएसए के अंदर रेगनिज्म आ गया। तो वो सब क्या था, प्रैक्टिकल रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेके आया, है ना, कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और अच्छा किया जाए। तो दोज आर द प्रैक्टिकल डेवलपमेंट। एनपीएम मॉडल भी कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से निकल के बाद में उसको थ्योरेटिकली, अलग अलग वर्जीनिया स्कूल है, ऑस्ट्रियन स्कूल है, तो कई सारे थिंकर्स है ना, उसको कैटेगराइज, जो भी प्रैक्टिकल डेवलपमेंट है उसको थ्योरेटिकली करता है, और थ्योरी में जो डेवलप हुआ उसको हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। तो जो भी डेवलपमेंट हुआ बेसिकली दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ हॉबैट फ्रॉम द विडो विल्सन राइटिंग। उसको हम लोग ना डिटेल में, जैसे कि अलग अलग फेजेज है, यू शुड कीप ए शॉर्ट नोट्स, है ना, छोटा छोटा कीवर्ड्स, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं हर पैराडाइम का, वो आपके पास नोट्स तैयार होना चाहिए। फिर उसके बाद ये जो पैराडाइम के बीच में कंपैरेटिव, जैसे मान लो पोस्ट 1990s का क्वेश्चन अभी आया नहीं है, देयर इज मोर चांसेस ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड ऑन द 1990, पोस्ट 90 के बाद क्या डेवलपमेंट हुआ, 1970 के बाद क्या डेवलपमेंट, वो ऑलरेडी आप पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार से अलग अलग पैराडाइम को है ना तैयार करना है। जैसे 1990s के बाद जो डेवलपमेंट हुआ, जैसे ग्लोबलाइजेशन है, या एलपीजी का लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। इससे क्या हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, अभी क्या सिटीजन इंपावरमेंट की बात करते हैं, नेटवर्क गवर्नेंस, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, को गवर्नेंस, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच। तो अब जो डायनेमिज्म आ गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन हैज बिकम वेरी डायनेमिक, इट इज बेस्ड ऑन नेटवर्किंग, बेस्ड ऑन कोलैबोरेशन। सो यू शुड हैव दैट क्वालिटी। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर थिंकर टॉपिक है, तो लीडरशिप है, डिसीजन मेकिंग है। तो अगेन दोज आइडिया, हाउ द एडमिनिस्ट्रेटर, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए एडमिनिस्ट्रेटर इन द contemporary time, those idea you can get in the governance paradigm only। 1990s के बाद जो रीडिफाइन हुआ, या डिवोल्यूशन, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, देयर आर मल्टीपल ट्रेंड्स व्हिच आर विजिबल इन द पोस्ट 1990s। और क्वेश्चन इज प्रोबेबल इन दिस फेज, ये क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पे हम लोग ब्लरिंग, बाउंड्री क्या है, ब्लर हो रहा है पब्लिक प्राइवेट का, बाउंड्री ऑलमोस्ट जो डिस्टिंक्शन था, पब्लिक को अलग प्राइवेट कर दिया, आजकल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आ गया, कॉन्ट्रैक्ट आउट हो गया, है ना, सिविल सोसाइटी के साथ नेटवर्किंग, को गवर्नेंस हो गया। तो वो एक तो है ना ब्लरिंग हो गया, पब्लिक प्राइवेट का जो कंप्लीट आइसोलेशन या सेग्रीगेशन था, या डिफरेंसेस, डायकोटोमी का आइडिया था, वो सब खत्म हो गया। अब होल ऑफ द गवर्नमेंट की अप्रोच, यानी सब लोग मिलके लोगों के नीड्स को फुलफिल करना है, सोसाइटी के अफेयर्स को मैनेज करना है, दैट इज द कंसेप्ट। फ्लैटनिंग मींस पहले हायरार्कियल मॉडल होता था, जो क्लासिकल फेज हम लोग क्या देखते हैं, पिरामिडिकल मॉडल, यानी टॉप डाउन अप्रोच होगा, टॉप डाउन हायरार्की होगा, है ना, सुपर स्ट्रॉन्ग सुपरविजन, है ना, क्लोज सुपरविजन होगा, कंट्रोल एंड अथॉरिटी होगा। अब वो क्या फ्लैटन हो रहा है, यानी मैट्रिक्स टाइप, जो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट थिंकर है क्रिस सरकारी, उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर, टीम मेकिंग, है ना, टीम बिल्डिंग पे काम ज्यादा हो रहा है। टीम इंडिया की बात हम लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी करते हैं। तो दैट इज द फ्लैटनिंग, मतलब हायरार्कियल सिस्टम को अब, है ना, एक कोलैबोरेटिव को गवर्नेंस टाइप अप्रोच कैसे लगाया जाए। विदरिंग मीन्स अब जो ये विदर अवे कर रहा है ना, स्टेट का रोल जो है, अगेन देयर इज रीडेफिनेशन ऑफ रोल ऑफ द स्टेट। स्टेट इज नॉट द ओनली अथॉरिटी दैट इज इन्वॉल्व इन द solving the problem of citizen, is it, है ना। We can also observe there are multiple civil society group, private sector through the corporate, CSR, corporate sector, so they are also funding the various public project। तो हम उसमें ये सारे मेजर ट्रेंड्स के बारे में हमें सम आइडिया होना चाहिए। फिर पबेड एज ए डिसिप्लिन, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो अभी तक हमने डिस्कस किया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है। उसके बाद हमने इवोल्यूशन देखा, विडो विल्सन का व्यू देखा। फिर उसके बाद आता है कि क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन, तो उसमें सब्जेक्ट मैटर क्या है, स्टेट इन एक्शन, यानी जो एग्जीक्यूटिव के बारे में, ब्यूरोक्रेट के बारे में, सेक्रेटरिएट सिस्टम के बारे में, पर्सनल सिस्टम के बारे में। Is there any other discipline which is studying those aspects? I don't think. तो अगेन देयर आर सम ओरिजिनलिटी, जो विडॉइट वाल्डो का आइडिया था कि कोर एंड पेरिफेरी, यानी कोर एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट मैटर जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कॉलर्स ही पढ़ाई करते हैं, थिंकर्स ही डेवलप डिस्कस करते हैं, या प्रैक्टिशनर्स है। तो दे हैव सम ओरिजिनलिटी है, तभी तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना एज ए सेपरेट डिसिप्लिन अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। उसके सब्जेक्ट मैटर है, तो हम लोग क्या देखें, कोर एंड पेरी, क्योंकि स्कोप पे डिपेंडेंट है। स्टेट इन एक्शन, विजिबल एस्पेक्ट ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन का विजिबल एस्पेक्ट ऑफ स्टेट, या स्टेट इन एक्शन, गवर्नमेंट इन एक्शन। अब वो क्या होता है, गवर्नमेंट इन एक्शन चेंज होता है विथ टाइम। पहले क्या, जब मोनार्कियल सिस्टम था तो स्टेट सब कुछ करता था, फिर सेपरेशन ऑफ पावर आया, फिर उसके बाद हम लोग देखे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आ गया, अब सिविल सोसाइटी का भी रोल आ गया। तो थ्री सेक्टर मॉडल जो हम लोग गवर्नेंस के अंदर पढ़ते हैं, नेटवर्क मॉडल, गवर्नेंस मॉडल,
उसमें क्या है कि काफी सब्जेक्ट मैटर भी डाइल्यूट हो रहा है। तो उसके बाद इसका कुछ थ्योरी, तो देयर आर सम पैरामीटर्स, ये जो बेसिकली हमने जो लिस्ट आउट करने की कोशिश किया, देयर आर सम पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट you decide whether a particular discipline, whether the public administration can be considered as a separate discipline or not, तो these are the parameters, है ना। कुछ थ्योरी है लेकिन स्टिल देयर आर कंट्रोवर्सी, देयर आर नो जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि क्रिटिसिज्म आता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इवॉल्व फ्रॉम प्री पैराडाइग्मेटिक फेज टू फेज पैराडाइग्मेटिक। सर यू आर नॉट ऑडिबल, आपकी आवाज। या एम आई ऑडिबल नाउ? यस सर, यस सर। ओके ओके, थैंक यू। And sir, your video is also not visible, I think. अच्छा, it is not visible, just let me check. Okay, okay, yeah, it's visible now. Yes, yes. ओहो। तो जब भी क्वेश्चन आता है कि वेदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी कंसीडर एज ए डिसिप्लिन और नॉट, वी शुड कीप दोज आइडियाज दैट ओरिजिनलिटी, सब्जेक्ट मैटर, है ना, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स है नहीं है, फिर एकेडमिक रिकॉग्निशन है नहीं है, वेदर देयर आर यूनिवर्सिटीज व्हिच इज टीचिंग द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द मास्टर्स और ग्रेजुएशन। तो हम लोग इस पे डिबेट, है ना, क्वेश्चन के इन सारे एस्पेक्ट को हमें ध्यान रखना है। और बाकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 50s के बाद सर अगेन आपकी आवाज चली। नो सर, नो सर। वीडियो आ रहा है सर, ऑडियो नहीं आ रहा। हाँ, एक मिनट, लेट मी चेंज द माइक जस्ट। Hello, am I audible now? Yes sir, yes sir. Okay, thank you. Just a minute. Is my video visible? Yes sir, yes sir. आवाज, ऑडियो वीडियो आ रहा है ना? जस्ट एनीवन कैन कंफर्म। हाँ जी सर, हाँ जी सर। Yeah, am I audible? हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी। ओके ओके, थैंक यू। तो हम लोग अभी ना डिसिप्लिन, जब डिसिप्लिनरी क्वेश्चन आता है तो हमें व्हाट वी हैव टू सी। अब क्या होता है कि कई सारे थिंकर्स ने बहुत सारे पैरामीटर टेक्निकल दिया है, तो ओनली थिंग इज यू शुड बी एबल टू हैव सम आइडिया वेदर द क्वेश्चन इज ऑन द डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट, तो उसका ओरिजिनलिटी ये सब पे आप, है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लैकिंग कर रहा है या वेदर इट हैज इट्स ऑन प्रिंसिपल और नॉट। तो अगेन, अगर हम लोग कंप्लीटली रिजेक्ट भी नहीं कर सकते कि पब्लिक, है ना, कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, ऐसा तो थिंकर लोग रिजेक्ट करता है। लेकिन इन जनरल वी स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज सम कोर एस्पेक्ट, है ना, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी, स्पेशली 1950s के बाद का जो दौर है उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, क्योंकि, है ना, इट हैज बिकम मोर ब्रॉडर इन नेचर, स्कोप, स्टेट डील्स विद द मल्टीपल अफेयर्स। उसमें क्या होगा कि आप सोसाइटी में सोशल साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ रही है, फिर उसके जो पॉलिसी मेकिंग है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, है ना, उसमें जरूरत है, या फिर तुम्हारा जो इकोनॉमिक्स है, मैनेजरियल व्यू है, तो सब एक और इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली आफ्टर 1950s। फिर उसके बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो सिलेबस में दिया हुआ है वो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी
अब तक जो डिस्कस किए, एनीथिंग यू वांट टू मी टू डिस्कस अगेन, या एनीवन कैन अनम्यूट एंड से कैन आई प्रोसीड फर्दर? यस सर, यस सर। जो अब तक हमने देखा है ना, सम ऑफ यू माइट हैव जॉइंड लेटर, कि बेसिकली हमने क्या देखा, हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, जस्ट ए मिनट, विल साइड अगेन, या वी हैव सीन हाउ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन इट हैज इवॉल्व। ओके, तो हमने देखा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक सेपरेट डिसिप्लिन की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। वी व्हाई वुड्रो विल्सन रेज द मल्टीपल क्वेश्चंस टू मेक द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सेपरेट डिसिप्लिन। आखिर जो उन्होंने जो एसे लिखा, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट वर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट वर रेज्ड बाय द वुड्रो विल्सन, व्हाट वर द इंपॉर्टेंट दोज क्वेश्चंस, whether those questions or statement views are still relevant in the contemporary time or not. So those are the things that we have discussed. Then हम लोग क्या देखे, मीनिंग क्या है पबेड का, पब्लिक का और एडमिनिस्ट्रेशन का। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग व्यूज है, नैरो स्कोप्स है, या फिर उसका ब्रॉडर व्यू, नैरो व्यू, है ना। पब्लिक पॉलिटिकल साइंस एज ए पबेड, एज ए पॉलिटिकल साइंस, एज ए मैनेजमेंट साइंस। तो अलग अलग पैराडाइम्स हमने देखा, इवोल्यूशन ऑफ पबेड एज ए इनटू द वेरियस फेजेस। Then we have also seen how the Woodrow Wilson's idea of dichotomy, it has been reinterpreted, reimagined or reinterpreted. There was resurgence of the dichotomy concept. अलग अलग फ्रैंक मार्टिन या फिर जो मोहित भट्टाचार्य या निकोलस हैंडी, उसके आइडियाज को हम लोग डायकोटोमी में यूज करते हैं। फिर हमने देखा पबेड एज ए डिसिप्लिन, पबेड का एज ए डिसिप्लिन में क्या है, उसके कीवर्ड्स क्या होने चाहिए, वो सारे आपको, है ना, यू शुड बी एबल टू रिमेंबर सम ऑफ द कीवर्ड्स। And then after 1950s, we have seen the era of where we have seen how the public administration, so far it was viewed as a instrument in the hand of the state. अब क्या हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ना, अब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या हुआ, या जस्ट, तो 1950s में हम लोग क्या देख रहे हैं कि वी आर सीइंग दैट द एडमिनिस्ट्रेशन वाज एक्टिंग लाइक ए इंस्ट्रूमेंट, कि हमको सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट whatever they give the order we will just implement it, है ना। they have become just instrument, है ना, रोबोट की तरह, मशीन लाइक अप्रोच जो क्लासिकल अप्रोच में देखा, मैकेनिकल अप्रोच, टेक्निकलिटीज आ गई। तो the young scholars of the American various universities, they were very much annoyed or anguished with the idea that the administration should be only treated as a instrumental view, या इंस्ट्रूमेंटल व्यू हमने जो देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है स्टेट के हाथ में पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का, उसका कोई इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस, यानी दे हैव एडमिनिस्ट्रेशन बिकम मोर नॉन रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ सिटीजन। अब उससे प्रॉब्लम क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे पीपुल ओरिएंटेड, प्रॉब्लम ओरिएंटेड सॉल्यूशन, कैसे सॉल्यूशन क्रिएट किया जाए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड कैसे बनाया जाए। तो यंग स्कॉलर्स दे हैव रिजेक्टेड ऑल द क्लासिकल डेवलपमेंट, वो जो एंटी टेक्निकल, एंटी पॉजिटिविज्म जो हम लोग देखते हैं, यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में न्यूनेस कैसे आया, है ना। अब हम लोग उसको ब्रीफली देखेंगे कि आखिर ये जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट आया, क्यों आया और उसकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो अब उससे क्या होता है कि नॉर्मली यू शुड बी एबल टू रिमेंबर सम ऑफ द कीवर्ड्स। अब जैसे मान लो वुड्रो विल्सन है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे हमने देखा कि जो डायकोटोमी का कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया गया। अब एनपीए को वुड्रो विल्सन से कनेक्ट कर दिया, एनपीए को गुड गवर्नेंस से कनेक्ट कर दिया, एनपीए को एनपीएम से कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। फिर एनपीए जब 1968 में जो पहली मीटिंग था, उसके लेगेसी को कैरी ऑन करने के लिए अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज किए गए। देखो 1968 में पहला कॉन्फ्रेंस हो गया, मिनो कॉन्फ्रेंस 1, उसके बाद 88 में और 2008 में, फिर अभी 2028 में फिर चौथा कॉन्फ्रेंस होने वाला है। अगेन दो लेगेसी, व्हाट इज द लेगेसी, व्हाई डू वी हैव द मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेस। तो अगेन आखिर यूनिकनेस क्या है, न्यूनेस क्या है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज द क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड। कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस, दोस क्वेश्चंस आर आस्क्ड। उसके बाद न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को वेवेरियन ब्यूरोक्रेसी से भी कंपेयर करके क्वेश्चन आता है, एनपीए को एनपीएम से कनेक्ट करके कंपेयर करने क्वेश्चन आता है। फिर जब हम एनपीएस पढ़ते हैं, न्यू पब्लिक सर्विस पढ़ते हैं, उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि किस प्रकार एनपीए और एनपीएम का जो लिमिटेशंस या स्ट्रेंथ्स है उसको मिला के न्यू पब्लिक सर्विस का कॉन्सेप्ट, या पोस्ट एनपीएम मॉडल जो है, जो एनपीए के कुछ आइडियाज को भी इनकॉर्पोरेट करता है, एनपीएम के आइडियाज को भी इंस्ट्रूमेंट को लेता है। तो अगेन दैट्स व्हाई इट बिकम बेसिस,
है ना। एनपीए और एनपीएम जो है काफी स्ट्रॉन्ग पिलर्स है ना। दीज आर द फर्स्ट री इन्वेंशन। नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, एनपीए को पहला री इन्वेंशन बोलते हैं। इट इज द फर्स्ट फर्स्ट री इन्वेंशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हम लोग आखिर ऐसा क्या हुआ, व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमरजेंस ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यू हैव टू, व्हेनेवर यू थिंक अबाउट ए टॉपिक कि व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट, व्हाई न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज come into existence, what was the newness, whether it has some similarity with the old public administration, yeah, traditional public administration. So what were the ideas that were rejected by the new public administration, what were the ideas that were carried forward, has it revival, led to the revival of some of the ideas of traditional public administration. So those are the aspect, you should be able to relate it. And then forward linkage क्या होता है, क्या एनपीए के some of has the all the ideas of एनपीए has been rejected in the contemporary time. एनपीएम आता है तो कई आइडियाज को रिजेक्ट करता है, लेकिन एनपीएम का खुद लिमिटेशन आएगा। उस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए एनपीएस आता है, न्यू पब्लिक सर्विस आएगा, जो सर्विस ओरिएंटेशन है ना, सिटीजन ओरिएंटेशन, ये सब बात करता है। तो एनपीए में क्या है कि स्टेट सब कुछ करेगा, लेट अस लेट स्टेट टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ welfare of the people, let the state perform all the public activities, let the state manage all the state affairs of the state. अब क्या हुआ, स्टेट ओवर बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट हो गया है ना। तो हम लोग उसके इम्पैक्ट को देखेंगे कि हैज एनपीए एम्पावर्ड द स्टेट, है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हैज एनपीए led to the degradation of theoretical development, or it has created obstacle in the डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी थिंकर्स नॉर्मली 50s तक आते आते जब सिस्टम स्कूल आ गया है ना, कंटीजेंसी थ्योरी आ गया, उसके बाद हम लोग थ्योरेटिकल डेवलपमेंट कम देखते हैं, है ना। ये जो एनपीए जो है, एनपीए क्या करता है, जो बिहेवियरल या जो पॉजिटिविज्म है, इंपेरिकल स्टडी है या टेक्निकलिटीज है, उसको रिजेक्ट करता है। अब एनपीए जो है एक आइडिया पब्लिकनेस को एम्फेसाइज करता है, there should be more and more public service orientation, city value orientation होना चाहिए, it should be relevant to the society में जो changes हो रहा है। तो there are multiple goals में क्या है, value oriented मतलब कि लोगों का जो आइडियोलॉजिकल नीड्स है या जो लोगों का जो सर्विस ओरिएंटेशन है, वेलफेयर का काम है, सोशलिज्म है, जो आइडियोलॉजी है, तो स्टेट शुड नॉट जस्ट पास ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द प्राइवेट सेक्टर। वहां पे वैल्यू ओरिएंटेड रेलेवेंट होना चाहिए, यानी सोसाइटी में जो चेंजेस है, सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को काम करने की जरूरत है। उसके बाद तुम्हारा चेंज ओरिएंटेड, इट शुड नॉट बी स्टैटिक, है ना, स्टेबल। ऐसा नहीं कि एकदम जो कंटिन्यूटी के चक्कर में हम कोई रिफॉर्म ले लाना चाह रहे हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के पास नॉर्मली एक क्रिटिसिज्म भी होता है, दे आर स्टेटस कोइस्ट, दे डोंट वांट चेंज, दे क्रिएट ऑब्स्टेकल फॉर द रिफॉर्म्स। तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी शुड बिकम मोर चेंज ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, है ना। वहां पे इक्विटी, जैसे क्या देयर वर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट इट हैज आल्सो गिवन राइज टू द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। तो इक्विटी तो इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम लोग अमेरिकन हिस्ट्री वंस यू रीड इन द इकोनॉमिक आल्सो, इकोनॉमिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं 1929 में अमेरिकन डिप्रेशन आया था। तो इन द बिफोर 1929 देयर वाज लेसे फेयर इकोनॉमिक्स, उसमें प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेंस था। फिर क्या हुआ कि जब जैसे ही ग्रेट डिप्रेशन आता है, इनइक्वालिटी बढ़ गई, लोगों का वेलफेयर एक्टिविटी के लिए स्टेट को केनेसियन इकोनॉमिक्स मॉडल आता है। उसमें हम लोग देखते हैं कि स्टेट का जो लोगों के वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए स्टेट शुड कम अप, स्टेट शुड इन्वेस्ट, देयर शुड बी पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वहां पे क्या धीरे धीरे देखा जाए तो यानी पब्लिक सेक्टर का भी इमरजेंस शुरू हो जाता है। 1929 30s के बाद हम लोग देख रहे हैं धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर जो इमर्ज होता है, दैट वाज टू कॉम्प्लीमेंट द प्राइवेट सेक्टर। बाद में 1950s आते आते 60s आते आते एक ऐसा फेज आता है जब हम लोग देखते हैं वेलफेयर स्टेट का इमरजेंस आता है। वेलफेयर स्टेट के अंदर पब्लिक मोनोपोली आ जाता है, पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस आ जाता है, और मोनोपोली एक बार आ गया तो फिर इनएफिशिएंसी, मिसयूज, है ना, डिस्क्रिशनरी पावर अधिक आ गया, तो मोनोपोली आ गया, सेल्फ, है ना, खुद ही इवेलुएट कर रहे हैं, खुद ही इंप्लीमेंट कर रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं। तो अगेन इट हैज बिकम लॉट ऑफ। तो उसके बाद जो रिगनिज्म है, थैचरिज्म है, या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का जो डेवलपमेंट है, क्रिटिकल स्कूल्स, तो वो उन लोगों का पर्पस, दे वर टारगेट, दे वर एम्ड एट रिफॉर्मिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो एनपीए क्या करेगा,
जो क्लासिकल एरा से लेकर जो 1950s तक का जो भी थ्योरेटिकल डेवलपमेंट है, जिसमें एम्पेरिकल स्टडीज यानी पॉजिटिविज्म, एम्पेरिकल फैक्ट बेस्ड स्टडी होना चाहिए। टू मच टेक्निकल, ब्यूरोक्रेट, ये इतने सारे टेक्निकलिटीज, रूल रिटन और है ना ऑर्डर्स पे काम होना चाहिए, रिजिडिटी आ गया, पिरामिडिकल स्ट्रक्चर आ गया, हायरार्कियल हो गया। तो एनपीए का पर्पस ये था कि अल्टीमेटली यू हैव टू वर्क एज ए टीम, है ना, देयर शुड बी मोर एंड मोर चेंज ओरिएंटेशन, गोल ओरिएंटेशन। तो वो मेन ऑब्जेक्टिव यही था। एनपीए ने क्या किया, जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो निगेटिव एस्पेक्ट है, जो उसको सोसाइटी से डिस्कनेक्ट करता है, रेलेवेंट इररेलेवेंस बनाता है, तो उसको रिफॉर्म करने के लिए, है ना, फर्स्ट री इन्वेंशन या री इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 5 गोल्स। तो जब भी क्वेश्चन एनपीए पे आएगा तो कुछ यूनिक कंट्रीब्यूशन है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो यूनिकनेस क्या है, 3 गोल्स, 3 एंटी गोल्स और 5 गोल्स, वो हमारा यूनिकनेस में भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन कई सारे जो हम बताएंगे कि नहीं यूनिकनेस नहीं है भी और नहीं भी है। कैसे नहीं है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो आइडिया था उसको वापस से, है ना, री इंटरप्रेट करता है, री एम्फेसाइज करता है पब्लिकनेस को, है ना, सर्विस ओरिएंटेशन को, सिटीजन ओरिएंटेशन को। तो ये सारा चीज गोल्स एंड एंटी गोल्स में। तो इमरजेंस का रीजन वही है कि नॉर्मली हमें पता होना चाहिए 1950s का कॉन्टेक्स्ट क्या था, 60s का कॉन्टेक्स्ट क्या था उस समय। यानी सोसाइटी में काफी चेंजेस आ गया, सोशल अपीवल था, पॉलिटिकल फील्ड में चेंज हुआ, इकोनॉमिक डोमेन में चेंज हुआ, तो एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट में भी चेंज हुआ, सिटीजन मोर एम्पावर हो गया, डीकोलोनाइजेशन भी हो रहा है एट द सेम टाइम। तो कंपैरेटिव स्टडी भी शुरू हो गया, उसमें रिक्स और ये सब भी आ गए, पब्लिक स्कूल थॉट्स भी आ गए। तो अब देख रहे हैं कि उसमें काफी चेंजेस जो हुआ उसका इम्पैक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे पड़ा। तो एनपीए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो इमर्ज हुआ, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव्स थे, गोल्स थे, उसको हमें कीवर्ड्स को याद करने की जरूरत है ना। फिर उससे क्या होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे हम देखे क्या हो इम्पैक्ट क्या हुआ, स्टेट, है ना, वेलफेयर एक्टिविटी, यानी इट हैज बिकम एरा ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो स्टेट स्टार्टेड टेकिंग मोस्ट ऑफ द पब्लिक एक्टिविटीज, पब्लिक मोनोपोली आने लगा। तो वहां पे एक इशूज फिर बात धीरे धीरे देखते हैं कि ओवर स्ट्रेच हो गया, यानी फिजिकल क्राइसिस भी आने लगा, क्योंकि इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया लेकिन फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है ना, मैन पावर नहीं है, टेक्निकल रिसोर्स नहीं है, इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स नहीं है। तो इट हैज क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर द स्टेट इटसेल्फ। So there was legitimacy crisis, legitimacy यानी स्टेट इज ए फेलियर, स्टेट कुछ भी करेगा तो इनएफिशिएंसी करेगा, मोनोपोली आ गया। तो इसका हम इम्पैक्ट भी देखेंगे कि एनपीए हैज आल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर द स्टेट आल्सो। तब जाके, है ना, क्रिटिसिज्म जब हम देखते हैं उसके बाद में कॉन्सेप्ट आता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का, गुड गवर्नेंस का, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, है ना। तो जब हम आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, जैसे ऑक्सफॉर्म का रिपोर्ट है ना, ऑल ऑफ यू रीड इन द प्रीलिम्स, कि ऑक्सफॉर्म का रिपोर्ट में कितना इनइक्वालिटी हर कंट्री में बढ़ रहा है, या सोशल जो इनइक्वालिटी है उसको कैसे दूर करना है। तो अगेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू प्ले ए वेरी एक्टिव रोल। जो हम लोग पढ़ते हैं कि भाई सिटीजन, सिविल सोसाइटी के बाद अब जो ब्यूरोक्रेट का एक्टिविज्म आता है, सिविल सर्विसेज एक्टिविज्म, है ना, क्या न्यूट्रलिटी होना चाहिए या एक्टिविज्म होना चाहिए। ब्यूरोक्रेट शुड प्ले ए प्रोएक्टिव रोल इन द सोसाइटी। ब्यूरो, you know, civil society, civil servants are expected to, you know, act like a change agent, है ना, ट्रांसफॉर्मर, रिफॉर्मर की तरह काम करना है। तो डू यू, है ना, हाउ द आइडिया ऑफ एनपीए, यू नो, मेड द पब्लिक या एडमिनिस्ट्रेटर मोर प्रोएक्टिव, है ना, सिविल सर्विसेज एक्टिविज्म को कैसे जन्म दिया, हाउ इट लेड टू द, यू नो, हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्रोएक्टिव रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे हम लोग ना रिलेट कर पाते हैं। पेपर 2 जब आएगा, जब भी सिविल सर्विसेज एक्टिविज्म की बात आएगी या न्यू पब्लिक सर्विस की बात होगी, तो हम उसको यूज करेंगे। वी हैव टू यूज द आइडिया ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनटू दैट, यू नो, दोज आंसर्स। तो उसमें एनपीए के टाइम क्या हुआ था, मेजर कुछ लैंडमार्क आए थे, कई सारे रिपोर्ट आए, जैसे मान लो हनी रिपोर्ट है, फिलाडेल्फिया का रिपोर्ट है। तो उसके बाद इन दोनों रिपोर्ट में क्या हुआ कि हाईलाइट किया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन को, विड्रो विल्सन ने तो बोल गया कि, है ना, यू शुड हैव द सेपरेट स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बट इट इज नॉट बीइंग टॉट इन द, यू नो, यूनिवर्सिटीज। There are no, you know, less focus on the theoretical development. So again, you know, those problems were highlighted by the, you know, Honey report or Philadelphia conference by the various academic scholars of PubEd. और हम उस समय देख रहे थे 1950s में ऑलरेडी, यू नो, क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा था, चैलेंजेस थे, रिएक्शंस थे, तो आइडेंटिटी क्राइसिस था। तो अगेन एनपीए हैज अगेन बूस्टेड द कॉन्फिडेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स। यस, public administration is capable of its independent existence। तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि एनपीए ने
जो मोरल डाउन हुआ था एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर का, फिलोसफर्स का, या एकेडमिशियंस का, या प्रोफेशनल्स का, उसको री एनर्जाइज किया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी डन अवे। एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोएक्टिव रोल है इक्विटी मेंटेन करना, चेंज लाना, है ना, वैल्यू, पब्लिक वैल्यू, पब्लिकनेस को मेंटेन करना। तो दे वर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो इट हैज अगेन बूस्टेड द कॉन्फिडेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो 1970s में हम लोग देख रहे हैं कि ना कई सारे थिंकर्स ने किताब लिखा। तो जैसे फ्रैंक मैरिनी ने लिखा मिंडोवी पर्सपेक्टिव, मतलब उसमें वो जितने भी थ्योरेटिकल डेवलपमेंट थे, ऑल द थ्योरेटिकल डेवलपमेंट ऑफ एनपीए वेयर क्लब टुगेदर इनटू दोज पब्लिकेशंस, है ना। ड्वाइट वाल्डो, किसी एक का किताब हमने याद करके, फॉर एग्जांपल टुवर्ड्स ए एनपीए, है ना, द मिंडोवी पर्सपेक्टिव, यू कैन कोट इट, है ना, बाय द व्हाइल राइटिंग आंसर, कि उसमें किस प्रकार के अलग अलग व्यू पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब हम एनपीए आ जाता है, एनपीए के बाद हम जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि एनपीएम क्यों आता है, व्हाई एनपीएम, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स दैट वर क्रिएटेड बाय द एनपीए। हमने अभी क्या देखा कि एनपीए के कारण स्टेट ओवर स्ट्रेच हो गया, है ना, स्टेट वाज अनेबल टू फुलफिल द नीड्स ऑफ सिटीजन, दे वर नॉट एबल टू प्रोवाइड द क्वालिटी सर्विसेज। अब क्वालिटी सर्विस नहीं प्रोवाइड होगा तो क्या होगा, डिसकंटेनमेंट होगा, सिटीजन एग्रेसिव हो जाएगा, प्रोटेस्ट होगा, वायलेंट मूवमेंट्स होंगे, तो ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट होगा, एनआरकी क्रिएट हो सकता है। तो स्टेट का मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स है या फिलोसफर्स, दे ऑलवेज कीप इन माइंड कि कुछ इस प्रकार का मॉडल क्रिएट हो जो लोगों की समस्याओं को दूर करे, है ना, द पीपल्स प्रॉब्लम शुड बी सॉर्टेड आउट, द अफेयर्स ऑफ द स्टेट शुड बी मैनेज वेल। तो दैट हैज लेड टू द इमरजेंस ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, है ना, या न्यू पब्लिक सर्विस, जो लेटर थ्योरेटिकल डेवलपमेंट या प्रैक्टिकल डेवलपमेंट, रिगनिज्म, थैचरिज्म, है ना, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स इमर्ज होता है 1960s के बाद। पब्लिक चॉइस अप्रोच है, न्यू राइट फिलोसफी है ना। तो उसमें हम लोग देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर का रोल, या इंस्टीट्यूशनल प्लुरलिज्म है, मोनोपोली को खत्म किया जाए, कंपटीशन होना चाहिए, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए। तो ये हम लोग देखेंगे एनपीए के इम्पैक्ट के कारण स्ट्रेच ओवर हुआ, फिर उसको काउंटर करने के लिए उसको, है ना, तो एनपीएम और ये बाकी थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल डेवलपमेंट हुआ। उसके अलावा क्या हुआ, क्योंकि एनपीए ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ओरिजिनल जो पब्लिकनेस वाला स्पिरिट था, या जो वैल्यू एस्पेक्ट है, उसको री एम्फेसाइज करता है, पब्लिक स्पिरिट को, पब्लिकनेस को। अगेन दोज एस्पेक्ट विल बी रीइटरेटेड इन द multiple conferences that will be organized after 1968 in the interval of 20 years। यानी 68 में हुआ, उस लेगेसी को कैरी ऑन कहां करेंगे, 1988 का जो सेकेंड मिनरोव कॉन्फ्रेंस होता है ना। उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि लेकिन 1980s का एक ऐसा फेज था that was an era of privatization, liberalization, globalization। वहां पे पब्लिक मैनेजमेंट एनपीएम का एरा आ गया, प्राइवेट सेक्टर, टेक्नोलॉजी इमर्ज हो गया, लीडरशिप का रोल बढ़ गया। तो वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि दे वर नॉट कंप्लीटली रिजेक्टिंग द मार्केट, क्योंकि स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट, देखो 1930s के पहले क्या था कि पूरा प्राइवेट सेक्टर, लेसे फेयर इकोनॉमी होना चाहिए, कोई प्राइवेट सेक्टर को इंटरफेयर मत करो, है ना, गिव देम द फ्रीडम, दे विल फुलफिल द नीड्स ऑफ सिटीजन। उसके 1930s में 29 में क्या हुआ, अमेरिकन, है ना, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, डिप्रेशन आ गया, ग्रेट डिप्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर क्या हुआ, किनेसियन इकोनॉमिक्स आके स्टेट के रोल को बढ़ा दिया, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट आ गया, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश होने लगे, पब्लिक का गवर्नमेंट का रोल बढ़ गया। इससे गवर्नमेंट, है ना, अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करने लगा, जॉब देने लगा। तो फिर क्या ओवर स्ट्रेच हो गया। 1960s आते आते 50-60s में वेलफेयर एरा आ गया, लेकिन स्टेट वाज अनेबल टू फुलफिल दोज नीड्स ऑफ सिटीजन के जो प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं कर पा रहा था। उससे क्या हुआ कि लेजिटिमेसी क्राइसिस आ गया। दो तरह का लेजिटिमेसी क्राइसिस, एक तो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं रहा, लोगों का ट्रस्ट खत्म होने लगा। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, कि जो हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ रहे हैं, इन जो सिटीजन है टैक्स देगा, टैक्स का पैसा को सरकार यूज करके लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। देवर स्टेट वाज फेलिंग एट ऑल द फ्रंट्स। उसके बाद फिजिकल क्राइसिस भी आ गया, स्टेट हैज टेकन लॉट ऑफ लोन्स फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द बैंक्स। अगेन स्टेट वाज नॉट एबल टू फुलफिल द डिमांड्स एंड देयर वर लॉट ऑफ करप्शन, मिसयूज, इनएफिशिएंसी। तो अगेन उसके बाद जो है प्राइवेटाइजेशन या रिगनिज्म, थैचरिज्म आता है, एनपीएम आता है। उस कॉन्टेक्स्ट में सेकेंड कॉन्फ्रेंस होगा, लेकिन अभी भी हमें पब्लिकनेस यानी पब्लिक स्पिरिट, उसको तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो अगेन हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन आता है कंपैरिजन का, है ना, विंडो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के बीच में कंपैरिजन आता है। तो सेकेंड में देखते हैं कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया, कॉन्टेक्स्ट प्राइवेटाइजेशन का आ गया, कॉन्टेक्स्ट
लिबरलाइजेशन, न्यू राइट फिलोसफी, पब्लिक चॉइस अप्रोच, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, रीगनिज्म, थीचरिज्म, उसका कॉन्टेक्स्ट आ गया। उस कॉन्टेक्स्ट में कंप्लीट स्टेट मोनोपोली का बात नहीं कर सकते हैं। तो अगेन दैट हैज वेरी टैसिट एक्सेप्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर। फिर आता है थर्ड कॉन्फ्रेंस जब आएगा, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, 2008 में फिर देख रहे हैं इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, ऑक्सफैम रिपोर्ट है, या जो रिसेशन शुरू हो गया था। तो अगेन मतलब स्टेट का जो इंटरनेशनल टेररिज्म आ गया, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, सिक्योरिटी प्रॉब्लम, है ना, डिजास्टर का इशू आ गया, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस। तो अब इन सारे चैलेंजेस दैट रिक्वायर्स होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच। again the administration, all the state machinery will have to work together। डिसेंट्रलाइजेशन का भी फेज अभी चल रहा है, यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम एवरीवन हैज टू कोलैबोरेट, वर्क एज ए टीम। टीम इंडिया का कॉन्सेप्ट आज जैसे हम लोग बात करते हैं। तो सिमिलरली दोज आइडियाज थर्ड कॉन्फ्रेंस में कुछ कंटिन्यू होगा। तो कुछ की कंट्रीब्यूशंस हैं, कुछ थ्योरीज हैं, कुछ है ना, जैसे मान लो कि उसका डेफिनेशन देना, पबेड का डेफिनेशन थर्ड कॉन्फ्रेंस में दिया गया कि सोशली एम्बेडेड प्रोसेस है ना, कलेक्टिवली डिसीजन मेकिंग या सॉल्विंग का, है ना, ताकि ह्यूमन फ्लोरिशिंग ऑफ ऑल हो जाए, सारे सेक्शन की नीड्स फुलफिल हो जाए। फिर फ्यूचर क्या होगा, पबेड का फ्यूचर क्या होगा, कि 2008 के बाद किस प्रकार का पबेड जो है एज ए डिसिप्लिन, मतलब कितना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। तो दोज वर द एस्पेक्ट दैट वाज डिबेटेड। यानी अगेन 2028 अगेन इट इज एक्सपेक्टेड नाउ मोर एंड मोर स्कॉलर्स फ्रॉम नॉन वेस्टर्न कंट्री दे आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग। अब उसमें एक क्वेश्चन आता है कि एथनोसेंट्रिसिज्म, यानी पहले क्या था, पहला कॉन्फ्रेंस ओनली द अमेरिकन स्कॉलर्स, सेकेंड कॉन्फ्रेंस देयर वर सम पार्टिसिपेशन, देयर वर जेंडर पार्टिसिपेशन, है ना। तो अगेन देयर थर्ड कॉन्फ्रेंस में हम क्या देखें, देयर आर नॉन वेस्टर्न थिंकर्स, फिलोसफर्स, दे हैव आल्सो पार्टिसिपेटेड। उससे जो एथनिसेंट्रिसिज्म है, यानी वेस्टर्न पूरी तरह से जो वेस्टर्न सेंट्रिक मॉडल था उसको रिजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी को वापस से हाईलाइट करता है कि देयर शुड बी कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टडी होना चाहिए। तो थर्ड कॉन्फ्रेंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हर कॉन्फ्रेंस का कुछ यूनिक कंट्रीब्यूशन है, कुछ सिमिलैरिटी है, और कुछ मतलब जो उस कॉन्टेक्स्ट क्यों सिमिलैरिटी क्यों है, कि जो ओरिजिनल आइडिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो तो कंटिन्यू होगा। फिर डिफरेंसेस क्यों है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है। 98 है ना, 68 का कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, 88 का कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया, और 2008 का कॉन्टेक्स्ट चेंज हुआ, फिर 2028 का कॉन्टेक्स्ट भी चेंज हुआ। तो हमको जो फ्रेमवर्क है ना, हाउ डू यू थिंक, जब भी क्वेश्चन आता है तो आप आंसर कैसे क्रिएट करते हो, हाउ डू यू फ्रेम द आंसर, कि दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट चेंज हुआ, कंटेंट में क्या चेंज हुआ, कॉन्ट्रीब्यूशंस में क्या क्या कंट्रीब्यूशन इसका रहा, क्या सिग्निफिकेंस रहा, या उसका इम्प्लीकेशंस क्या हुआ, आखिर वो जो थियोरेटिकल डेवलपमेंट हुआ उससे क्या इंपैक्ट पड़ा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन। उन सारे एस्पेक्ट के कीवर्ड्स को आपको तैयार करने हैं और टेबुलर फॉर्मेट में, फ्लो चार्ट में आपको बनाने हैं। तो अभी जो फोर्थ कॉन्फ्रेंस है, अब क्योंकि पोस्ट एनपीएम मॉडल के बाद कई सारे कंपीटिंग पैराडाइम्स हम लोग बोलते हैं, मल्टीपल पैराडाइम्स क्रिएट हुआ। तो वो पैराडाइम्स लिटिल है ना, थोड़ा लास्ट में हम लोग इस चैप्टर कल हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के जो अलग अलग कॉम्पिटिंग पैराडाइम्स है वो किस प्रकार के दे आर कॉम्पिटिंग फॉर द नेक्स्ट पैराडाइम। अभी निकोलस हेनरी ने तो गुड गवर्नेंस तक ही पैराडाइम दिया, उसके बाद कई डेवलपमेंट्स हैं। तो उसके बारे में फ्यूचर ऑफ पबेड क्या हो सकता है, आज का कॉन्टेक्स्ट में क्या हो सकता है, वो हम लोग डिटेलिंग करेंगे। बाकी इसके अलावा जो एनपीए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमने जो देखा कि स्टेट का रोल बढ़ जाता है, मोनोपोली आ जाती है, करप्शन बढ़ेगा, इनएफिशिएंसी हुआ, मिसयूज हो रहा है, रिसोर्स का वेस्टेज हो रहा है। अब इन सबको काउंटर करने के लिए रिफॉर्म आना जरूरी है, क्योंकि स्टेट का लेजिटिमेसी क्राइसिस आ गया, फिजिकल क्राइसिस आ गया। तो स्टेट वाज अनेबल टू फुलफिल द नीड्स ऑफ सिटीजन, सो दे वर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव मॉडल्स। तो वेलफेयर एरा का जो फेलियर का टाइम कॉन्टेक्स्ट में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है स्टेट को सारी जिम्मेदारी दे दो, स्टेट विल डू एवरीथिंग, स्टेट विल टेक केयर ऑफ ऑल द नीड्स ऑफ सिटीजन। लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट क्या था, कॉन्टेक्स्ट में तो स्टेट फेल कर रहा है, वेलफेयर में ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच हो गया। तो एनपीए आइडिया हैज नॉट बिकम मच इफेक्टिव। उसने तो बड़ी बड़ी बातें किया, है ना, देयर आर क्रिटिसिज्म ऑफ एनपीए। एनपीए ने तो है ना जस्ट पुराने ट्रेडिशनल आइडियाज को रीअसर्ट रीएम्फसाइज कर दिया, लेकिन उसने कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं दिया। तो सॉल्यूशन कहां से आता है, कल जो हम लोग मेनली फोकस करेंगे कि आखिर जो स्टेट की समस्याएं थी, जो लोगों की प्रॉब्लम्स थी, या मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, इन्हें है ना, तो उसका रियल सॉल्यूशन किधर से आता है। तो न्यू राइट फिलोसफी क्या है ना, व्हाई पब्लिक चॉइस अप्रोच, यानी लोगों के चॉइस को मैक्सिमाइज करना है, लोगों को मल्टीपल अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस देने हैं, है ना, कंपटीशन होना चाहिए,
बेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए। तो कई सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, है ना, कई सारे थिंकर्स ने अलग अलग स्कूल ऑफ, जैसे बजट मैक्सिमाइजेशन है, तो कई सारे वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी का क्रिटिसिज्म है ना, तो दैट हैज आल्सो लेड टू द इमरजेंस ऑफ पब्लिक चॉइस अप्रोच। तो हम सारे, है ना, चाहे बजट मैक्सिमाइजेशन निष्कानन का है, रेंट सीकिंग बिहेवियर है गॉर्डन टुलॉक का, ब्यूरो शेपिंग मॉडल, तो इन सारे मॉडल को हम लोग डिटेल में थोड़ा ब्रीफली देखने का कोशिश करेंगे कि हाउ दीज दे हैव क्रिएटेड अल्टरनेटिव मॉडल्स फॉर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट हैज आल्सो कंटिन्यूड द पब्लिकनेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन क्रिटिसिज्म भी आता है कि जो एनपीएम का दौर था, इसमें पब्लिकनेस जो है डाइल्यूट हो गया। पब्लिकनेस मतलब जो पब्लिक सर्विस स्पिरिट है या गवर्नमेंट का नेचर चेंज होने लगा, प्राइवेटाइजेशन, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, रीगनिज्म, थेचरिज्म या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में देख रहे हैं। तब जाके उसके जब सब कुछ प्राइवेटाइज, कॉन्ट्रैक्ट आउट तो कर नहीं सकते हैं, उसके भी क्रिटिसिज्म, करप्शन, नेक्सस, क्रोनिक कैपिटलिज्म, इनइक्वालिटी आएगा। फिर उसके कुछ काउंटर स्कूल्स आएंगे। काउंटर स्कूल ऑफ थॉट क्या करेगा? स्टेट को ब्रिंग बैक स्टेट, री एम्फेसाइजिंग द नीड ऑफ सेंट्रलिटी ऑफ स्टेट। स्टेट एज ए, ना, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच है या न्यू पब्लिक गवर्नेंस मॉडल है। तो एनपीएम मॉडल के बाद भी पोस्ट एनपीएम मॉडल आएगा। उन सारी चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, और फिर जाके उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, विल ट्राई टू लुक एट, विल डिस्कस पब्लिक चॉइस अप्रोच, फिर इम्पैक्ट क्या रहा, है ना, इम्पैक्ट के बाद करंट स्टेटस क्या है एनपीएम का, क्रिटिसिज्म, फिलोसफी क्या है, न्यू राइट फिलोसफी जो है उसके बारे में अलग अलग स्कूल थॉट पढ़ेंगे, गवर्नेंस मॉडल, है ना, पोस्ट एनपीएम, इस प्रकार से आगे अपन, है ना, कल देखेंगे डिटेल में। तो अब तक जो डिस्कस किया, है ना, तो बेसिकली हमने अब तक क्या देखा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन, है ना, किस प्रकार, है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन इट हैज इवॉल्व। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने जर्नी को स्टार्टिंग से ओरिजिनेट, जो स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उस समय से लेकर अब तक क्या फेजेज रहा, कितने पैराडाइम्स में डेवलप हुए, हर पैराडाइम्स का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को आपको, है ना, कीवर्ड्स तैयार करने हैं, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, माइंड मैप बनाओ, है ना, गोल्डन सीट में आपको अलग अलग पैराडाइम्स के की फीचर्स को लिखने हैं। फिर जब हमने नैरो मीनिंग है, स्कोप है, नेचर है, या वेरियस स्कूल ऑफ थॉट है, उसके आपके कीवर्ड्स, आपको बस एक आइडिया होना चाहिए, स्केलेटन तैयार। जब भी फ्रेमवर्क होता है थॉट प्रोसेस का, वो डेवलप करने में हेल्प करेगा। फिर हमने एनपीए के अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस के बारे में, कंट्रीब्यूशंस के बारे में रफली देखा। तो यू हैव टू प्रिपेयर सम ऑफ द कीवर्ड्स, है ना, जो भी आपके नोट्स है, वट एवर कोचिंग यू हैव टेकन और यू हैव डन द सेल्फ स्टडी, यू हैव टू मेक द शॉर्ट नोट्स, ठीक है, उसके शॉर्ट नोट्स बना के, एंड देन यू प्रिपेयर, look at the PYQ also, come up with the doubts, and in the next session, and then we'll wrap up, we'll make a summative view of all the topics tomorrow, and then next day after tomorrow we'll try to, yeah, again I think there are some students joining now ठीक है, तो हम लोग ये कल हम लोग देखते हैं। बाकी इज देयर एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? हेलो सर। या भूषण सर एक्चुअली वो एक बार मीटिंग से लीव हो जाते ना, तो फिर फिर से ज्वाइन करना एनी पड़ता है। सजेशन यू वांट टू गिव कि क्या करना चाहिए हमें आगे, एनी फीडबैक? हेलो, एम आई ऑडिबल सर? Yeah, you can share feedback if Uh, there is no doubt, we can wrap up Sir, for एक today. feedback था, जैसे I was just like reading through the model answers, Okay. and I've observed ऐसे जो अंसारी सर के questions होते, they are bit PYQ basically class, हाँ, tomorrow there is a at 11 o'clock in the daytime on the यानी tomorrow, कल जो है, कल 11 बजे ध्रुव सर ने PYQ एक सेशन लेंगे। तो you will try to see the various type of questions which are being asked. तो कल एक देखते हैं, कल, है ना, कुछ PYQ डिस्कस भी हो जाए और जनरल व्यू पॉइंट भी आ जाए, है ना, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं। यू विल हैव ए सेशन टुमारो एट 11 AM in the morning by Dhruv sir. You can attend, and tomorrow also again in the evening you can attend the second class of PubEd, and then you can decide ki whether it is helpful or not. Yeah, we'll be getting the copy of notes. Okay, if you want, we'll share the notes, there is no issue, we'll make it more comprehensive for you, and then we'll share it. Yeah, okay. Is there anything else you want? You can put it in the chat box also if you wish. You can put am I it, audible, sir? we can discuss, or you can unmute yourself and ask. Am I audible, sir? Hello? Hello? Yeah, if there Hello? is any there is no doubt, you can always reach out to me
Yes, you are not okay, just a Hello. minute. Hello. Please speak again. Am I audible, sir? Yeah, you are audible now. Yeah. So I attended the session, sir. It's a wonderful session. I just have few doubts, sir. कि जैसे जब आप जो पढ़ा रहे हैं, sir. So Right. already like few of the students have like done the basic things of short notes and they have revised it like twice or thrice. So I can obviously and other students can relate to what you're saying. But the fact is that there is a FOMO thing that जैसे model answers है, sir. तो अंसारी सर के जो model answers होते हैं, once you start revising them, तो वहाँ थोड़ा डिफरेंट कंटेंट होता है, तो इट फील्स लाइक यार ये तो नोट्स में है नहीं, एंड यू जस्ट गेट टू वैल्यू एड, एंड एट दिस टाइम बिकॉज प्रीलिम्स इज आल्सो अप्रोचिंग, सो आई एम जस्ट स्केप्टिकल अबाउट लाइक आई वांटेड टू जॉइन द कोर्स, बट थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म है कि पबैट के एक तो आप जैसे आप पढ़ा रहे हैं क्लास में, उसके बाद आई हैव टू रिवाइज माय ओन नोट्स, देन उसमें मॉडल आंसर्स पे थोड़ा कुछ वैल्यू ऐड करना है, तो सर वो टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा सा अगर आप गाइड कर देंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा. मतलब how to approach PubAD in last 2 months. Very good question. I think many of you. Am I audible? Yes sir, yes sir. हाँ, तो हम लोग देखो टारगेट क्या है कि हम लोग ना जैसे अभी मोस्टली जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं, है ना, दे प्रिपेयर ऑप्शनल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, नवंबर दिसंबर और मैक्सिमम मिड जनवरी तक का टाइम होता है जो जीएस जो मेंस की तैयारी होता है प्लस में, है ना, मेंस के ऑप्शनल को तैयार, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज द मेंस दैट विल डिसाइड योर सिलेक्शन इन द फाइनल लिस्ट, है ना, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसमें टाइम मैनेजमेंट हमने क्या किया कि हर चैप्टर के व्हाट एवर नोट्स यू आर फॉलोइंग, है ना, मोर एंड लेस, मतलब व्हाट एवर वी हैव डिस्कस्ड, all those things are written in your notes, है ना, whatever reference book you have with you, है ना, तो if you can just revise those, you know, important keywords, because you have already done once at least, I believe, and everyone has done once, so you can just have a glimpse of the topics that we are discussing before the class and after the class, and in the class you can ask your queries, your doubts, so you don't have to give so much extra efforts. No, class में जब हम पढ़ाई डिस्कस कर रहे हैं तो you can also have the glimpse of your notes, है ना, अपने नोट्स अपने सामने रख सकते हैं, एंड देन बिफोर क्लास यू कैन कम अप विद सम ऑफ द डाउट्स दैट यू हैव, यू कैन, यू नो, सेंड इट in the personal, will share my, you know, number also on the telegram channel, you can share the personal doubts, so we'll take up those doubts into the class. तो एक तो आपको क्लास में वेरी अटेंटिव रहना है, जो क्वेश्चन आंसर सेशन है मेनली हम लोग का जो फोकस है, अल्टीमेटली जो डिस्कशंस हो रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन आंसर को अप्रोच कैसे करना है, कमांड और डिमांड को कैसे समझना है, की एस्पेक्ट को कैसे हाईलाइट करना है. तो वो जो डे आफ्टर टुमारो का जो सेशन है, जो उसमें हम लोग क्या है कि पिछले 3-4-5 साल के जो टेस्ट सीरीज के भी क्वेश्चंस हैं, प्लस में पीवाईक्यूज को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, क्योंकि जो भी टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं हर टॉपिक से कुछ 2-4 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सारे कंसेप्ट को अच्छे से डिफाइन करता है या फिर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है विद सम वैल्यू एडिशन कंटेंट, जैसे कंटेंट है वो भी हम लोग शेयर कर देंगे, कोलेजिएट कर रहे हैं, है ना, जितने भी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस हैं तो टॉपिक वाइज हम लोग सेग्रीगेट करके आपको शेयर भी कर सकते हैं और डिस्कस भी करेंगे, तो यू डोंट हैव टू डू मच वर्क, विल बी डूइंग ऑन योर पार्ट, ठीक है, तो सो इट विल सेव योर टाइम. ओनली थिंग इज कि जो हम क्वेश्चन शेयर करें, डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग, जस्ट हैव ए माइंड मैप टाइप, है ना, जस्ट लुक एट द कीवर्ड्स कि क्या क्या हम पुट कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो हैव दैट ब्रीफ आइडिया, है ना, तो उसके बाद पार्टिसिपेशन इफेक्टिव होगा और लर्निंग भी बेटर होगा. या सुधांशु? गॉट इट सर. सर मॉडल आंसर्स को लेके थोड़ा फोमो रहता है बिकॉज सर के मॉडल आंसर्स लाइक दे आर वेरी गुड. तो आज मैं पढ़ ही रहा था सर, आज मैं मतलब CSE 2023 वाले में कुछ मॉडल आंसर्स पढ़ रहा था, तो उसमें थोड़ा सा लगा कि कुछ नया, मतलब नए एस्पेक्ट से कुछ चीजें ऐड ऑन कर रखी हैं, कुछ नए इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली. अब सर लेकिन इस टाइम पे फोमो आता है कि लास्ट का टाइम बचा है, हाँ, देन आई एम नहीं टेकिंग देखो मॉडल उसमें ना आंसर्स. प्रॉब्लम क्या होता है कि कंटेंट को आर्टिकुलेशन, जब भी आपने कई सारे कोचिंग में आपने टेस्ट दिया होगा ना, तो कई बार आपके फीडबैक्स आते हैं कि हाउ डू यू आर्टिकुलेट, जैसे मैंने भी कई कॉपी, है ना, कम से कम 200-300 कॉपी एवेल्युएट किया पवेट का, तो प्रॉब्लम क्या, आर्टिकुलेशन का प्रॉब्लम है. कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट को इंटरप्रेट करने का तरीका, प्रेजेंटेशन का तरीका और कुछ जो टर्मिनोलॉजी है ना, वो आपके हर टॉपिक पे तैयार होने चाहिए. तो जो टेस्ट सीरीज मॉडल आंसर है उसके जो कोर या जो यूनिक एस्पेक्ट है वो हम आपको क्लास में बताएंगे, कि जो नोट्स में जो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके अलावा जो कीवर्ड्स कुछ सर ने हाईलाइट किया, उसका हमने एक समरेटिव ओपिनियन, है ना, कीवर्ड्स का एक समरेटिव व्यू बना दिया है लगभग, तो डे आफ्टर टुमारो हम लोग शेयर भी करेंगे और डिस्कस भी करेंगे, ठीक है. तो वो आपका ना जस्ट हैव द ग्लिम्स एंड उसको बस अपने नोट्स को रिवाइज करना है, और जो समरेटिव नोट हम आपके साथ शेयर करेंगे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस के टॉपिक वाइज जो बने हुए हैं, है ना, और पीवाईक्यू, इतना कर लिए तो आई थिंक दैट विल बी एनफ.
So rest of the time, just devote 2 hours in the class, or at least 1 hour, before class or after class, whenever you find 1 or 2 hours. If you can manage, then it will be done. There will बाकी है ना, बीच में काफी गैप्स भी है, फेस्टिवल्स भी सीजन चल रहा है, you will have lot of time. Sir, Yeah, any other doubt? hello मतलब सर sir, am I मॉडल audible? आंसर्स को मतलब मॉडल आंसर सर उनको मतलब अगर हम स्किप कर दे तो, और आपके कंटेंट पे जो अपना बेसिक है और आपका जो आप प्रोवाइड करेंगे उन पर रिलाई करें तो इट इज मोर देन सफिशिएंट, राइट? या इट इज मोर देन सफिशिएंट, है ना. जैसे मॉडल आंसर क्या है ना, यू डोंट हैव टू डू, जैसे आप तो टेस्ट सीरीज है ना, यू ज्वाइन एनी टेस्ट सीरीज, यू डू सम राइटिंग प्रैक्टिस, ऑलरेडी यू आर डूइंग दैट. तो मॉडल आंसर के कुछ जो यूनिक एस्पेक्ट जो आपको वैल्यू ऐड कर सकता है, विल जस्ट गिव ए ग्लिम्स ऑन दैट, है ना, कि जस्ट आपका इंडिचमेंट हो जाए. कंटेंट वही है, कंसेप्ट वही है ना. व्हाट एवर बुक्स यू रीड, एवरीथिंग इज सेम. ओनली थिंग इज द वे दे आर इंटरप्रेटिंग, द वे दे आर पुटिंग द कंटेंट, और डायग्राम चार्ट, फ्लो चार्ट बना के कुछ यूनिकनेस आ गया. तो इट इज नॉट नेसेसरी पूरा वो हम पीडीएफ भी शेयर कर देंगे, जो भी है ना, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. जस्ट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दोज कंसेप्ट्स या ऑल द टर्म्स, जो नए टर्म्स आ रहे हैं ना, उसको हम आसानी से एक बार डिस्कस कर लेंगे, सो दैट यू बिकम फेमिलियर, तो आपको नया नहीं लगेगा. Excuse me, sir. थैंक यू सर. या थैंक यू. Sir, am I audible? या ऑडिबल. Sir, are you saying कि आप पिछले 2-3 साल की जो टेस्ट सीरीज के जो मॉडल आंसर है उसमें अंसारी सर के नोट्स के अलावा जितना भी वैल्यू एडिशन करना है वो आप कंपाइल करके दे दोगे, सो दैट वी रीड ओनली दैट मच? हाँ, जैसे ना अंसारी सर का है, या पवन सर के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, या मोहंती सर के हैं, जो क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्ट को अच्छे से डिफाइन करता है, या क्वेश्चन के अलग अलग क्या होता है ना, एनपीए है तो अलग अलग एस्पेक्ट है, क्वेश्चन अलग अलग एस्पेक्ट्स पे पूछे जाते हैं. तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं या इंपॉर्टेंट थीम्स है जो आपको उस कंटेक्स्ट, उस टॉपिक के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, जो टेस्ट सीरीज से निकल के आता है. कई चैप्टर्स क्लास में हम लोग नॉर्मली, है ना, फाउंडेशन क्लास है तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है. कई बार कॉम्प्लिकेशंस कब आता है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो उस जो यूनिकनेस होगा वो हम ना उसको एक साथ समराइज करते हुए कीवर्ड्स बना के वो आपसे शेयर करेंगे और डिस्कस भी कर लेंगे. ग्रेट सर, थैंक यू. या एनी अदर डाउट? एंड सर, कल जो पीवाईक्यूज डिस्कस होने वाले हैं सर, जो भी सेशन होता है ना पीवाईक्यू का, आई हैव अ सजेशन कि वो सर एक दिन पहले या फिर क्लास के पहले अगर आप ग्रुप पे डाल दो तो वो ब्रेनस्टॉर्म करके अगर लिखना हो या ब्रेनस्टॉर्म करना हो तो हाँ, पहले. डेफिनेटली. टुमारो इज ओनली ओरिएंटेशन सेशन. पीवाईक्यू हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस को लेके जस्ट गिवन यू ऑल ऑफ यू आइडिया कि हम पीवाईक्यू को कैसे आगे कंडक्ट कराएंगे, क्या है मेजर इश्यूज, क्या इंपॉर्टेंट है. जैसे एक ओरिएंटेशन टाइप का पीवाईक्यू का है ना, इस कोर्स पे कैसे फोकस करें, और प्लस में कुछ क्वेश्चंस को एज ए प्रैक्टिस है ना क्लास में कराएंगे सर. हाँ सर कुछ क्वेश्चंस की थोड़ी वो प्रैक्टिस करा देना, क्योंकि और देन हर पीवाईक्यू सेशन के पहले या क्वेश्चन आंसर के सेशन के पहले ना कुछ क्वेश्चंस हम है ना शेयर करेंगे ग्रुप में. जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग करना जरूरी है, तभी इफेक्टिव लर्निंग हो पाएगा, है ना. सर आई हैव वन स्मॉल सजेशन, मतलब हाँ, प्लीज प्लीज. जैसे अब आज हमने काफी सारे टॉपिक्स डिस्कस किए, तो ऐसे बीच में कैन देयर बी अ टाइम ऑफ 5 मिनट्स इन विच उतने टाइम तक जितना किया उसमें अगर कोई डाउट्स है, क्योंकि हाँ, सर ऐसे हो या जाता है आफ्टर 1 hour वी कैन टेक 5 to 10 minutes ब्रेक, है ना, 5 मिनट का. और जो भी डाउट्स है ना चैट बॉक्स में पुट करके, और हाँ. उसका एक मतलब 2 मिनट का ब्रेक लेके ना, ऑल ऑफ यू कैन पुट द डाउट्स इन द चैट बॉक्स, और उसको एक बार जस्ट ग्लिम्स कर लेंगे कि क्या है ना बेसिक प्रॉब्लम आ सकती है, डाउट्स है, तो एक ब्रेक भी हो जाएगा. और यू कैन ऑल्सो रिवाइज, नोट्स भी अपने साथ रखना है, उसको रिवाइज कर लेना है जल्दी फटाफट. वर्क सर, थैंक यू सर. वेलकम. या एनी अदर डाउट, और I think we can now conclude. Yes sir. Okay, thank you. Let us meet Thank you. tomorrow. Sure Thank sir. you everyone. Thank you for Good the night part. sir. Thank you so much, sir. Yeah, welcome. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू सर.